guys, welcome back again. My name is Amit and it's code time. Another weekend and we are finally back again with another solution video with bi-weekly contest 173 जो कि आज शाम को 8 बजे ही हुआ था. And yeah, I have solved all the four questions and overall contest was nice enough. We'll discuss कि contest कैसा था, questions कैसे थे, कैसे करना था हर एक problem को and the solution for every problem and everything. But before we move on to the video, I would like to discuss a very important thing with everyone who is watching this video right now, and that is कि यार around 85% of the people who are watching this video are not subscribing. And it was very disappointing for me कि the most watches which I was getting was basically from non-subscribers, around 85% of the views, while only 14% of the subscribers were watching. So क्या करो यार? If you are watching this video for the first time, do subscribe, do hit the subscribe button so that you never miss an update from my side. It's my responsibilities that to deliver the content on regularly every weekend कि आप तक solutions timely पहुंचे, आपको content सही से मिले, एकदम proper time पे मिले, regularly मिले, right? So it's your responsibility that you show me the support by subscribing, liking, and watching the complete video till the end. So yeah, that was my concern, and yeah, without wasting any time, let's directly jump to it. Okay, so let's start now. So yeah, this was bi-weekly contest 173 and you can see it was conducted today. आज जनवरी 3 है and मैंने इसे आज ही रिकॉर्ड किया है, आज ही से सॉल्व किए सारे चारों क्वेश्चंस. And yeah, so it had four problems जो कि by standard है. And yeah, there was one easy problem, two medium problems and one hard problem as per lead code. From my side, I would say the first three problems again were easy. I would say not very easy enough, but yeah, still on the easier side. Like the first two problems were straightforward, pretty straightforward. The third problem was not pretty straightforward, but yeah, still I would say the logic behind it is not very complex, still not very hard. And the last problem again, अचानक से लेवल बढ़ाने वाला काम करना, वो तो हम देख चुके हैं कि पहले ही प्रीवियस कॉन्टेस्ट में होता रहता है कि दे गिव द फर्स्ट थ्री प्रॉब्लम्स ऑफ लो लेवल एंड द फोर्थ प्रॉब्लम अगेन बूम बॉम्ब की तरह गिरा दिया. Right. So again, in this contest, I would say it was not a very balanced contest जहाँ पर धीमे धीमे difficulty increase हो. But okay, I would say कि for compensating the first three problems, they decided to give a hard problem. And fourth problem, to be honest, it is doable, but yeah, आपको time लग सकता है and हो सकता है कि ना भी हो. Okay. And yeah, we'll discuss all about that later on. And yeah, overall I would rate this contest as medium, at the level of medium, just because of the hard question that is present at the end. While for the first three questions I would directly say it's easy or easy medium. Yeah, so yeah, without wasting any time, let's jump to the first question. So पहला question खोलते हैं. And yep, we have opened the first question. I hope everything is visible. एक बार मैं zoom in कर लेता हूँ. Okay, so directly question पढ़ के समझ में आ रहा है. The first question is reverse string prefix. So you are given a string s and an integer k. Reverse the first k characters of this s and return the resulting string. सिंपल है, आपको स्ट्रिंग s दिया हुआ है और एक इंटीजर k दिया हुआ है. s के पहले k कैरेक्टर्स को आपको रिवर्स करना है और आपको फाइनल स्ट्रिंग को भेजना है. फॉर एग्जांपल, लेट्स से वी हैव abcd and k is 2. So k2 means first two letters, we reverse ab, it becomes ba. So the final string becomes bacd, and that is what you have to return. Similarly, when we have xyz, k is 3, it is covering the complete string, so it becomes zyx. And yeah, for hey, we know. Let's read the constraint. The constraint is what? The size of the string ranges up to 100. S consists of only lowercase letters, and K can range from 1 to the size of the string. Okay. So as you know that this is a very direct problem. So इसके दो तरीके हैं जो आप करना चाहो. या तो आप इनबिल्ट फंक्शन यूज कर सकते हो रिवर्सिंग का, या तो which is a very direct और simple brute force way, क्योंकि brute force question ही है. And that is basically you create an answer string, you take the size and you declare an iterative variable I. Then you basically iterate over the first k characters and you append them to the string in the reverse order. रिवर्स ऑर्डर बेसिकली मींस कि जो अगला कैरेक्टर आ रहा है उसके उसमें आपको ऐड करना है जो पिछला स्ट्रिंग बन चुका है. सो लेट्स से फॉर एग्जांपल वी हैड एबीसीडी. सो व्हाट विल हैपन, सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, आंसर इक्वल टू ए प्लस आंसर. सो आंसर वाज इनिशियली नल, मतलब खाली था, एम्प्टी था. सो नाउ आंसर विल बिकम ए. नाउ नेक्स्ट वी हैव बी. दिस विल बिकम बी प्लस ए. सो दिस विल बिकम बी ए. So after we have covered the first two characters, this loop will end. Then we go to the final two characters. It will start answer plus equal to I. This means that this time we are not appending in the reverse order, but we are appending in the straightforward order. So now what will happen when C will come? It will become BA plus C. So it will become BAC and D. And in this way, we can directly do this question. So overall, the time complexity is what? Order n. And the space complexity, if you would consider of the string, resulting string, then you would say order n. But yeah, I would say not. It's not. I would not say it's not even required. You can actually reverse this in the initial part of the string itself. Whatever string s you have been given, आप उस पर डायरेक्टली रिवर्स फंक्शन लगा सकते हो और पहले के कैरेक्टर्स को क्या कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो. कोई इशू नहीं है. जीरो से के बीच में एक आप दो आइटरेटिव वेरिएबल्स ले लो एंड यू कैन जस्ट कीप ऑन स्वैपिंग सो दैट द ऑर्डर रिवर्सेस. ओके, यू कैन ऑल्सो डू दैट. सो आपको एक नए स्ट्रिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. सो इन द बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी आई वुड से ऑर्डर इज द टाइम एंड ऑर्डर वन इज द स्पेस. एंड विद दिस वी आर ओवर विद द फर्स्ट क्वेश्चन. ग्रेट. सो मैंने कहा था जैसे कि
आई ऑलवेज से पहले दो क्वेश्चन हमेशा नो ब्रेनर आते हैं. ओके, लेट्स गो टू द सेकंड क्वेश्चन. ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या है? मिनिमम सवारी लेंथ विद डिस्टिंक्ट सम एट लीस्ट के. ओके, क्वेश्चन की काफी सारी प्रॉपर्टीज टाइटल में ही है. मिनिमम, ठीक है, मिनिमम सवारी लेंथ इतना हो गया, विद डिस्टिंक्ट सम, ओके, एट लीस्ट के, ठीक है. अब क्वेश्चन पढ़ते हैं. यू आर गिवन एन इंटीजर एरे नम्स एंड इंटीजर के. रिटर्न द मिनिमम लेंथ ऑफ अ सब एरे whose sum of the distinct values present in that sub array, each value is counted only once, is at least k. If no such sub array exists, return -1. Okay. A sub array is a contiguous non-empty. We know what is a sub array. तो आपको क्या बताना है? एक array दिया हुआ है, उसमें से you have to find the मिनिमम लेंथ ऑफ अ सब array. ठीक है, कोई भी एक सब array पकड़ो और जितने भी सब array बन सकते हैं विद द गिवन प्रॉपर्टी, उसमें से जिसकी मिनिमम लेंथ है आपको वो बतानी है. और वो प्रॉपर्टी क्या है? whose sum of distinct values present in that sub array. डिस्टिंक्ट वैल्यूज मतलब कि अगर मान लो आपने कोई सब array पकड़ा, उसमें जितनी भी डिस्टिंक्ट वैल्यूज यानी कि यूनिक वैल्यूज आती हैं, उनका सम अगर एटलीस्ट के आता है, देन इट मीन्स कि भाई वो एक जो सब array है दैट इज वैलिड. ओके, whose sum of the distinct values present is at least k. Okay, so each value is counted only once, and if no such subarray exists, return -1. Great. Let's go to the first test case. Like we have 2 2 3 1 and k is equal to 4. Great. So let's say मैं ये 2 3 ले लूँ. अगर मैं 2 3 ले लूँ, ठीक है, अगर मैं 2 3 लेता हूँ, क्योंकि सिंपल सी बात है, 2 2 लेने का मतलब नहीं. 2 2 लेने का मतलब क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें डिस्टिंक्ट वैल्यू नहीं आ रही. डिस्टिंक्ट वैल्यू एक ही बार ऐड करी जाती है. दैट इज वाई ओवरऑल इसका सम जो आएगा इस सब आएगा वो 2 ही आएगा, एंड दैट इज नॉट करेक्ट. We go to 2 3. When we go to 2 3, we have two distinct values. Great. और क्योंकि दो डिस्टिंक्ट वैल्यूज है, दोनों को ऐड भी करेंगे. 2 + 3 is 5 and 5 is bigger than or equal to 4. This means कि ये एक वैलिड सब array है and the length of the sub array is 2. Therefore the answer is 2. Okay, you can also take as 3 + 1. 3 + 1 ये भी एक वैलिड आंसर है. Okay, because उसमें भी लेंथ 2 है और sum is greater than or equal to 4. ग्रेट. देन वी कम टू सेकंड टेस्ट केस. सेकंड टेस्ट केस में क्या है? 3 2 3 4 है, k is 5. ओके, सो अब आप देख लो, इंडिविजुअली अगर आप किसी भी एक नंबर को पकड़ोगे तो इट विल नेवर बी एबल टू फुलफिल द द क्राइटेरिया. पर अगर आप किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स कर लो, चाहे 3 + 2 ले लो, चाहे 2 + 3 ले लो, ठीक है, चाहे 3 + 4 ले लो, ठीक है, फिर चाहे आप 2 3 4 ले लो, यू कैन सी एवरी सम इज बेसिकली बिगर नॉर इक्वल टू 5. करेक्ट. तो इस वजह से वी कैन सी दैट 2 इज द मिनिमम लेंथ पॉसिबल, एंड दैट इज व्हाई 2 इज द आंसर. व्हेन वी हैव 5 5 4 एंड k is 5, वी कैन सी कि एक सिंगल एलिमेंट भी इज इनफ टू सफाइस आवर प्रॉपर्टीज, and that is how basically we return 1. Let's read the constraint. The size of the array goes up to 10 to the power of 5, and the values inside the array also go up to 10 to the power of 5, and the value of k, basically the given sum, goes up to 10 to the power of 9. तो याद रखो, एक और एक सिंपल सी एक यू कैन से इट इज अ टिप कि जब भी आपको बड़ी वैल्यूज दी गई हैं टारगेट सम के लिए, या फिर आपके एरे में टारगेट वैल्यूज दी गई हैं, एनी व्हेनेवर एनीथिंग इज इन्वॉल्व विद प्रोडक्ट और सम्स, कभी भी अगर आपको लग रहा है कि वैल्यूज बहुत बड़ी हैं या फिर मिनिमम रेंज में भी है, मान फॉर एग्जांपल 10 की पावर 5 तक भी हैं, in order to be sure, for example मैं आपको बताऊं, let's say the size of your array was 10 to the power of 5 and nums of 5 was also 10 to the power of 5. If let's say each number was 10 to the power of 5, then total maximum sum possible of the array is what? 10 to the power of 10. So that is why to be always to be on the safer side, जो आपको पता है कि अगर the question involves sum or product in some or the other way, then always predefined long. हर जगह लॉन्ग को यूज करना, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है यू गेट अ नेगेटिव पेनल्टी ड्यूरिंग द कॉन्टेस्ट जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपने लॉन्ग नहीं लिखाया और कहीं पर ओवरफ्लो हो गया, एंड यू विल बी बेसिकली फ्रस्ट्रेटेड कि भाई इतनी फुद्दू सी मिस्टेक तो यार नहीं एक्सपेक्ट करी थी मैंने, क्योंकि लॉजिक इज कम्प्लीटली करेक्ट, एवरीथिंग इज कम्प्लीटली करेक्ट, बस ओवरफ्लो हो गया क्योंकि आपने इंट यूज कर लिया, लॉन्ग यूज नहीं किया. सो रिमेंबर, व्हेनेवर प्रोडक्ट और सम्स इज इन्वॉल्वड एंड द नंबर्स आर क्वाइट ह्यूज, यू सी, देन ऑलवेज ट्राई टू यूज लॉन्ग फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग. ओके, इतना कुछ मेमोरी का इशू नहीं बनेगा, दैट आई कैन गारंटी. ओके, सो नाउ सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन में भी बहुत कुछ नहीं जाता है. अ लॉट ऑफ यू विच हैव बीन डूइंग प्रोग्रामिंग, जिन्होंने अगर स्टार्ट किया है तो आई थिंक उनको शायद ना आइडिया हो, बट या आई थिंक दैट मोस्ट इवन विद द पीपल हु हैव डन इट फॉर आई थिंक 1 or 2 months, जिनको सिर्फ डीएसए करते हुए 1 या 2 महीना भी हुआ है ना, वो भी देख के समझ गए होंगे दिस इज एक्चुअली अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्लाइडिंग विंडो. ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, यू हैव टू टेल द मिनिमम लेंथ ऑफ सब एरे. ठीक है, ये पहला हिंट आपको मिल गया. ठीक है, सेकंड हिंट इज बेसिकली सम ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज. एक सब एरे में सब एरे दे दिया, सिंपल सी बात है, कॉन्टिग्यूअस है, सो वी कैन रिप्रेजेंट इट यूजिंग 2 पॉइंटर्स. करेक्ट. एंड द सम इज एटलीस्ट के. सो आपको क्या करना है, डिस्टिंक्ट वैल्यूज मेंटेन करने के लिए यू कैन आइदर यूज अ डेटा स्ट्रक्चर लाइक मैप. एंड इस क्वेश्चन में क्योंकि वी नो दैट द मैक्सिमम वैल्यूज इनसाइड द एरे, दैट इज बेसिकली नम्स ऑफ आई, कैन आल्सो गो अप टू 10 to the power of 5. इसका मतलब आप डायरेक्टली एक वेक्टर एरे भी यूज कर सकते हो काउंटिंग के लिए. ठीक है, आप चाहे तो मैप यूज कर लो, नो वरीज, उसके जगह पर आप एक एरे भी यूज कर सकते हो क्योंकि नंबर्स उतने बड़े नहीं है.
ठीक है। सो डायरेक्टली वी कैन सी कि आप दो पॉइंटर लगा दोगे, ठीक है, दो पॉइंटर चलाए आपने, यू स्टार्टेड कैलकुलेटिंग द सम ऑफ ईच वैल्यू, आपने देखा कि वो जो वैल्यू है वो हमारे सब एरे में, मतलब अभी तक वो पहले देखी गई है कि नहीं देखी गई है, विच मीन्स इज इट डिस्टिंक्ट और नॉट। अगर डिस्टिंक्ट है तो अपने सम में ऐड कर दी, नहीं है तो रहने दी। उसके बाद चेक किया उसे डायरेक्टली कि इज द सम करेंटली ग्रेटर देन इक्वल टू के। अगर सम ग्रेटर देन इक्वल टू के है, दिस मीन्स इट्स टाइम कि हम अपने आंसर जो भी वेरिएबल है उसका लेंथ अपडेट करें। एंड व्हाट वी कैन डू इज, क्योंकि हमें मिनिमम लेंथ फाइंड करनी है, दैट इज वाई वी कैन ऑल्सो मूव आवर प्रीवियस पॉइंटर, ठीक है, हम दो पॉइंटर ऐसे चला के रखते हैं। तो ऐसे समझो, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से, ये मेरा ओरिजिनल पॉइंटर था, ठीक है, इज माई ओरिजिनल पॉइंटर, और यहाँ से आई स्टार्टेड पिकिंग अप वैल्यूज, ये इंडेक्स कवर किया, ये इंडेक्स कवर किया, ये इंडेक्स कवर किया, मान लो यहाँ पर आने के बाद आई हैव फाउंड माई सम हैज बिकम ग्रेटर देन इक्वल टू के। ओके, सो दिस मीन्स कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो सब एरे है, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, ये मतलब ये तो पक्का 100% करेक्ट है, इट फॉलोज ऑल द प्रॉपर्टीज, तो इसकी लेंथ एक पॉसिबल आंसर हो सकता है। बट एट द सेम टाइम, क्योंकि सम मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू के है, दैट इज वाई नाउ, क्योंकि मुझे और आगे की वैल्यूज भी उठानी है, राइट, मुझे क्या चाहिए, मुझे मिनिमम लेंथ चाहिए, राइट, आई डू नॉट वांट द मैक्सिमम लेंथ। अगर मैक्सिमम लेंथ होती तो हम और आगे बढ़ाते चले जाते, राइट, पर क्योंकि मुझे मिनिमम लेंथ चाहिए, दैट इज वाई व्हाट आई विल डू, जो इसका प्रीवियस पॉइंटर था ये वाला, अब इसको आगे बढ़ाएंगे, मतलब कि अपने सम को घटाएंगे घटाएंगे बाय रिमूविंग द प्रीवियस वैल्यूज, जो पुरानी वैल्यूज थी इनको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, अब उनको एक एक करके हटाएंगे। और कब तक हटाएंगे, जब तक हमारा सम जो है वो लेस देन के ना हो जाए। क्योंकि जब तक लेस देन इक्वल टू, जब तक ग्रेटर देन इक्वल टू के है, मान लो जैसे हम इन दोनों पॉइंट्स पे थे, यहाँ पर आके मेरा जीरो, यहाँ पर मान लो मेरा एंडिंग पॉइंट रुक गया था, ठीक है। अब मान लो मैंने एक वैल्यू घटाई, और जो मेरा नया ये छोटा वाला सा वैल्यू बना है, इसका सम भी ग्रेटर देन इक्वल टू के है। सो नाउ टेल मी, इज दिस नॉट अ बेटर आंसर, ये बेटर आंसर है कि नहीं, क्योंकि इसका लेंथ जो है वो क्या है, छोटा है, एंड दैट दिस आल्सो हैज सम ग्रेटर देन इक्वल टू के, राइट। सो दिस मींस हम इसको और आगे बढ़ाते जाएंगे, कब तक, जब तक सम रिमेन्स ग्रेटर देन इक्वल टू के। जैसे लेस देन के हो गया, हमको पता लग गया कि भाई अब और अपने विंडो को श्रिंक नहीं कर सकते। इन दिस वे यू विल कीप ऑन मूविंग योर पॉइंटर्स एट टिल द एंड, एंड यू विल आल्सो कीप अ ट्रैक ऑफ की वैल्यूज जो है वो डिस्टिंक्ट है कि नहीं है। फॉर दैट यू कैन यूज अ मैप, or a vector count, a vector basically, or an array. And yeah, it's बस इतना ही क्वेश्चन, इट्स नॉट बिगर देन दैट, सिंपल टू पॉइंटर स्लाइडिंग विंडो का क्वेश्चन, और कुछ भी नहीं है इसमें, राइट। लेट मी जस्ट शो यू द कोड। ओके, so yeah, here you can see we have first taken the size of the array nums, उसके बाद mx ले लिया, maximum element of the array। ये है बेसिकली, क्योंकि मैंने मैप यूज नहीं किया है, आई नो द वैल्यूज आर नॉट वेरी बिग, सो इसलिए मैंने एक क्या इंटीजर टाइप का एरे बनाया है, ठीक है, बाय टेकिंग एवरीथिंग इन इंडेक्सेस। मैं जनरली ऐसा क्यों करता हूँ, आई ऑल्सो टेल यू व्हाई आई जनरली प्रेफर व्हेन द सो अंडरस्टैंड दिस, व्हेन द वैल्यूज आर एक्चुअली स्मॉल। ओके, लेट्स से तुम्हें की वैल्यू टाइप का रिलेशन स्टोर कराना है, राइट, तो द फर्स्ट चॉइस इज ऑलवेज मैप्स। ओके, क्योंकि मैप कुछ भी स्टोर करा सकता है, ठीक है, पाइथन में वो डिक्शनरी होती है, जावा में वो ट्री मैप होता है, ठीक है। सो इन जनरल टर्म्स आई वुड से कि मैप कुछ भी स्टोर कर सकता है एज अ की वैल्यू पेयर, ठीक है। बट जब हम स्पेसिफिकली बात कर रहे होते हैं कि हमारा की जो है वो एक नंबर है, और वैल्यू जनरली वैल्यू का कुछ भी हो सकती है, वैल्यू काउंट हो या कुछ और हो, ओके, बट आई वुड से कि मान लो सिमिलर टर्म्स में, मान लो इंटीजर है और वो भी इंटीजर है, लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ काउंट, राइट, और फ्रीक्वेंसीज और एनीथिंग एल्स, एनीथिंग विच इज न्यूमेरिक इन नेचर, ठीक है। तो अगर हमारा की और वैल्यू जो है वो न्यूमेरिक नेचर में है, और उनकी जो रेंज है वो छोटी है, इन दैट केस इट इज ऑलवेज प्रेफरेबल टू यूज अ वेक्टर और एन एरे। क्यों, आई विल टेल यू व्हाई। देखो, जब तुम एक मैप यूज करते हो या फिर एक अनऑर्ड मैप यूज करते हो, यू आर बेसिकली यूजिंग अ रेड ब्लैक ट्री, ठीक है, या फिर कुछ और बकेट्स यूज कर रहे होते हो बैकएंड में, क्योंकि इंप्लीमेंट ऐसे होते हैं, राइट। एंड देर इज ऑलवेज अ फैक्टर हाउ दीज थिंग्स वर्क, ठीक है। जैसे अगर तुम एक मैप यूज करते हो, उसमें इंसर्शन, इरेज करने का, सर्च करने का टाइम, एवरीथिंग इज लॉग इन। इफ यू यूज अनऑर्डर्ड मैप, उसमें ऑर्डर वन होता है, बट इफ यू डोंट नो अबाउट दिस, when the number of entries in unordered map becomes very big, around let's say 10 to the power of 6, around 10 million or 1 million, it also starts behaving like a normal map। तो उसमें भी जो कांस्टेंट फैक्टर होता है अंदर, दैट बिकम्स ह्यूज, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, टाइम टेकन इन अपडेटिंग और फाइंडिंग द एलिमेंट इज एक्चुअली हायर देन अ नॉर्मल एरे इंडेक्स। आप किसी भी एरे को ले लो, उससे किसी भी इंडेक्स को एक्सेस अपडेट करने में सिर्फ ऑर्डर वन टाइम लगता है। अगर आपको किसी एंट्री पे वैल्यू घटानी है, बढ़ानी है, मल्टीप्लाई, डिवीजन, कुछ भी करना है, इट ओनली टेक्स ऑर्डर वन टाइम, राइट, उसके ऊपर नहीं लगता। दैट इज वाई ऑलवेज प्रीफर एन एरे और अ वेक्टर। ओके, उसके बाद क्या किया, एक आंसर वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया इंट मैक्स, इन केस वी आर नॉट एबल टू फाइंड आंसर देन यू हैव टू रिटर्न -1, याद है। उसके बाद क्या करते हैं, वी स्टार्ट आवर लूप, ओके, एंड देन वी चेक इफ दैट नंबर हैज ऑल हैज अ काउंट 0। इफ इट हैज अ काउंट 0, इट मींस दैट इट इज अ डिस्टिंक्ट वैल्यू फॉर आवर सब एरे, फॉर आवर विंडो, and we add it to the final sum। Now we increase the count of this number, okay, and then as I said that we keep on checking while sum is greater than equal to k, we basically try to get the minimum length possible,
राइट। अगर ये चीज पॉसिबल होती है, अगर कभी भी सम ग्रेटर देन इक्वल टू के हो जाता है, देन वी बेसिकली व्हाट, वी ट्राई टू मिनिमाइज आवर लेंथ विंडो, चेक करते हैं बेस्ट आंसर पॉसिबल क्या है, एंड वी डिक्रीज इट्स काउंट, एंड एज सून एज इट्स काउंटर बिकम जीरो, तो काउंटर अगर जीरो हो गया, देन वी बेसिकली सब्ट्रैक्ट इट। ओके, तो याद रखो क्या करते हैं बेसिकली, अगर वो नंबर पहली बार आ रहा है तो उसको ऐड करेंगे, ठीक है, पर उसका काउंट तो फिर भी रखेंगे, ठीक है, बिकॉज वी आर मूविंग इन दैट डायरेक्शन। तो हो सकता है 2 के बाद एक और 2 आया, फिर एक और 3 आया, ठीक है, ऐसे ऐसे करके हो सकता है कि वी आर रिपीटिंग थिंग्स, राइट। तो उसके लिए उनका काउंट रखते हैं, पर उनको टोटल सम में ऐड नहीं करते। याद रखो क्वेश्चन में क्या कहा था, एक्चुअली में सिमुलेशन ही कर रहे हैं। क्वेश्चन में क्या बोला था, इवन इफ वी हैव डुप्लीकेट एलिमेंट्स विद इन दैट सब एरे, वी ओनली सम ऑफ द डिस्टिंक्ट वंस। जो डिस्टिंक्ट है सिर्फ उन्हीं को सब्ट्रैक्ट करते हैं और उन्हीं को ऐड करते हैं, राइट, उन्हीं को ऐड करते हैं बेसिकली। तो दैट इज वाई, क्योंकि हम डिस्टिंक्ट को ही बेसिकली अगर एक बार है सिर्फ तभी उसको ऐड कर रहे हैं, ठीक है, नहीं तो उसको ऐड नहीं कर रहे हैं, राइट, पर हम उसका काउंट रख रहे हैं क्योंकि हमें डिक्रीज करना है उसे, राइट। सो इन दिस वे बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर श्रिंकिंग आवर विंडो, ठीक है। और लेट से उसका अगर काउंट जो है वो जीरो पहुंच जाता है, दिस मीन्स कि ये जो नंबर था इसका फाइनल वो था, ठीक है, ये बेसिकली इसका फाइनल अकरेंस था इस विंडो के अंदर, राइट, एंड दैट इज वाई वी डिलीटेड फ्रॉम द सम, क्योंकि हमने सम में भी इसको सिर्फ एक ही बार ऐड किया है, इसके फर्स्ट अकरेंस पे। दैट इज वाई इसको रिमूव भी सिर्फ उसके लास्ट अकरेंस या फिर उसकी एक अकरेंस पे करेंगे, बार बार नहीं करेंगे, राइट। एंड इन दिस वे वी कीप ऑन अपडेटिंग आवर सम एंड चेकिंग कि कौन सा बेस्ट आंसर है, ठीक है। रिमेंबर हमारी जो विंडो होती है उसमें बहुत सारे नंबर्स आते हैं, ठीक है, पर हर एक नंबर जो होता है वो सम में ऐड नहीं होता है। सम में क्या होता है, जो यूनिक अकरेंस है सिर्फ वही ऐड होता है। लेट से हमारे पास अगर 2 2 4 4 5 दिया हुआ है, तो हम लोग ऐड सिर्फ 2 4 और 5 को करेंगे, 2 और जो एक्स्ट्रा 4 है उसको ऐड नहीं करेंगे। दैट इज वाई व्हाट वी डू, यू सी, इफ द काउंट इज जीरो देन ओनली वी एड इट टू द सम, ठीक है, नहीं तो उसका काउंटर तो हम बढ़ा ही रहे हैं। काउंटर इज बेसिकली जस्ट फॉर कीपिंग अ काउंट कि कितनी बार इस विंडो में आ चुका है। As soon as the sum becomes greater than k, then we start shrinking our window again, क्योंकि हमें मिनिमम लेंथ चाहिए, ठीक है, सिंपल सी बात है, कॉमन बेसिक सेंस है, ठीक है। एंड देन वी कीप ऑन डिक्रीजिंग द काउंट, मतलब अपने राइट साइड से, अपने लेफ्ट साइड से, सॉरी, ठीक है, लेफ्ट बाउंड्री को घटाते जाते हैं। एंड वी चेक इफ जो भी नंबर हमारा है उसका लास्ट अकरेंस है बेसिकली, ठीक है, उसके लास्ट अकरेंस का मतलब क्या हुआ कि बेसिकली अब उसका एक ही अकरेंस बचा है, तो उसका मतलब है कि वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द टोटल सम, क्योंकि वो एक बार ऐड हुआ था तो उसको एक बार अब हटाना भी पड़ेगा, राइट। और अगर ये मान लो पहला करेंस उसका नहीं है, या फिर मान लो अभी और अकरेंसेस बाकी है, तो हम उसको डिलीट नहीं करते हैं, ठीक है, उसको वो सम हमारा वैसे का वैसा ही रहता है, पर हमारी जो विंडो है वो श्रिंक होती चली गई, राइट। सो इन दिस वे वी आर इन अ वे, टू बी ऑनेस्ट, इन अ वे वी आर एक्चुअली हैंडलिंग कि अगर डुप्लीकेट भी हमारी विंडो में आते हैं ना, तो वो इग्नोर हो जा रहे हैं। आप खुद सोचो, हम विंडो में नंबर का काउंट रख रहे हैं पर उनको अपने सम में ऐड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और वक्त आने पे जब हम डिक्रीज कर रहे हैं, अपने विंडो को श्रिंक कर रहे हैं, तो हम सिर्फ एक जो लास्ट अकरेंस बचता है उस नंबर का, सिर्फ तभी अपने सम से उस वैल्यू को घटा रहे हैं, ठीक है। व्हाट दिस मीन्स, इन अ वे वी वर एक्चुअली एबल टू इग्नोर द डुप्लीकेट्स। जो डुप्लीकेट अगर आए भी हैं हमारी विंडो में, ठीक है, हम उनको इग्नोर कर पा रहे हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस सोल्यूशन, right? And finally we return the answer, and the time complexity of this approach is basically order n, ठीक है, क्योंकि मैंने मैप यूज नहीं किया है, बेसिकली मैप भी यूज कर लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैसे तो, ठीक है। क्योंकि मैप की एक हिडन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग एन लगती है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कीज एंड वैल्यूज एक्सिस्ट करें, बट या लोग उसे ऑर्डर वन बोल देते हैं अनऑर्ड मैप यूज करके, बट ठीक है, नो इश्यूज, आपने यूज किया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई यूज अ वेक्टर, सो या ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाज ऑर्डर एन, एंड ओवरऑल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वाज ऑर्डर एन, ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने आपने कोई मैप बनाया होगा, आई यूज द वेक्टर, राइट। सो टाइम इज ऑर्डर एन, स्पेस इज ऑल्सो ऑर्डर एन। इन दिस वे विल बी एबल टू सॉल्व द थर्ड सेकंड क्वेश्चन। सो फर्स्ट टू कंप्लीट, जैसे कि मैंने कहा, नो ब्रेनर्स। नाउ वी मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चलो कूदे तीसरे क्वेश्चन पे। ये आ गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन दिखने में बहुत ही भयंकर, बहुत ही डरावना, पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। लैंग्वेज पे इतना मत जाना, लैंग्वेज इन लोगों ने जैसी लिखी है, जैसी डरावनी लिखी हुई है, इतना ज्यादा कंटेंट है, पर कुछ भी नहीं है प्रॉब्लम में, ठीक है। इसको जरा मैं समझाऊंगा ना तो एकदम समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फाइंड मैक्सिमम वैल्यू इन अ कंस्ट्रेन्ड सीक्वेंस, ठीक है। कोई कंस्ट्रेंट सीक्वेंस है, उसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, हमें वही बतानी है। टाइटल से पता लग गया। अब पढ़ते हैं। यू आर गिवन एन इंटीजर n, अ 2D इंटीजर एरे रेस्ट्रिक्शन, एंड एन इंटीजर डिफ ऑफ लेंथ n-1, ठीक है। तीन चीजें दी गई हैं, इंटीजर n दिया गया है, 2D एरे रेस्ट्रिक्शन दिया हुआ है, और एक डिफरेंस एरे दिया हुआ है लेंथ n-1 का। सिंपल सी बात है, पढ़ के पता लग गया होगा। डिफरेंस एरे है वो, जहां तक क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होगा, ठीक है। योर टास्क इज टू कंस्ट्रक्ट अ सीक्वेंस ऑफ लेंथ n denoted by a0 a1 up to an-1 such that it satisfies the following conditions, करेक्ट, हमें सीक्वेंस ही बनाना है यहाँ पर। और वो कंडीशंस क्या है, a0 is 0, ठीक है, पहला जो एलिमेंट है हमारा सीक्वेंस का वो जीरो रहने वाला है। ऑल एलिमेंट्स इन द सीक्वेंस आर नॉन नेगेटिव, जितने भी हमारे एलिमेंट्स में सीक्वेंस है वो सब नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि या तो वो जीरो होंगे या तो जीरो से बड़े होंगे, कोई भी नेगेटिव टर्म नहीं होगा। -1 -2 नहीं हो सकता, या तो जीरो जीरो से बड़े, होल नंबर्स बेसिकली। दिस इज द सेकंड कंडीशन।
थर्ड कंडीशन क्या है, फॉर एवरी इंडेक्स, जितने भी इंडेक्सेस हैं, ABS of A of I minus A of I plus 1, यानी कि एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैज टू फॉलो द डिफरेंस एरे। ठीक है, ABS of A of I minus A of I plus 1 वो होना चाहिए, वो शुड बी लेस देन इक्वल टू डिफ ऑफ आई। ठीक है, दो दो भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, उनके बीच जो डिफरेंस है, ठीक है, दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू द गिवन डिफरेंस एरे एट दैट इंडेक्स। ठीक है, ओके, तो ये भी समझ में आ गया, क्लियर है कि क्या है, सिंपल सी चीज है। उसके बाद आता है फॉर ईच रिस्ट्रिक्शन ऑफ आई। अब जो रिस्ट्रिक्शन ऑफ आई एरे दिया हुआ है वो किस टाइप का, 2D एरे था, याद है? उसमें हर एक जो 2D एरे है उसमें हर एक इंडेक्स पे क्या है, बेसिकली दो चीजें हैं। एक इंडेक्स IDX मेंशन्ड है एंड अ मैक्स वैल्यू। व्हाट डज इट मीन? द वैल्यू एट इंडेक्स और पोजीशन IDX इन द सीक्वेंस मस्ट नॉट एक्सीड मैक्स वैल्यू। इसका मतलब क्या, कि जो रेस्ट्रिक्शन एरे में हमें जितने भी रेस्ट्रिक्शन दिए होंगे, हमें पता नहीं कितने दिए होंगे, सिंपल सी बात है, एन से ऊपर तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, एन एलिमेंट्स हमारे सीक्वेंस में है तो उससे ऊपर तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, एंड बेसिकली हमें बोला गया है कि जो भी रेस्ट्रिक्शन पाई दिया हुआ है, तो एक इंडेक्स और एक मैक्सवेल दिया होगा। तो व्हाट इंडेक्स एंड मैक्सवेल मीन इज कि जो भी एलिमेंट हमारे सीक्वेंस में IDX पोजीशन पे या IDX इंडेक्स पे आएगा, दैट कैन नॉट एक्सीड मैक्सवेल। मैक्सवेल से छोटा ही होना चाहिए या फिर उसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, A ऑफ IDX शुड बी लेस देन इक्वल टू मैक्सवेल, सिंपल सी बात है। Your goal is to construct a valid sequence that maximizes the largest value within the sequence while satisfying all above conditions। तो हमें एक वैलिड सीक्वेंस बनाना है जो कि ऊपर की सारी कंडीशन फुलफिल करे। एट द सेम टाइम हमें जो लार्जेस्ट वैल्यू बन सकती है इस पूरे सीक्वेंस में, अब वो पता नहीं कि किसी भी एक एलिमेंट की बन सकती है, राइट? ठीक है, लार्जेस्ट वैल्यू का मतलब क्या है कि आपने मान लो सीक्वेंस बनाया, उसके बाद आपके सीक्वेंस में लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, तो यू हैव टू बेसिकली मैक्सिमाइज द मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, मैक्सिमाइज द लार्जेस्ट वैल्यू जो कि सीक्वेंस में बन सकती है, राइट? यू हैव टू रिटर्न एन इंटीजर डिनोटिंग द लार्जेस्ट वैल्यू प्रेजेंट इन सच एन ऑप्टिमल सीक्वेंस। ठीक है, जितने भी ऑप्टिमल सीक्वेंसेस बन सकते हैं जो कि ये कंडीशन को फुलफिल करेंगे सारी की सारी। ठीक है, आपको बताना है कि जितने ऐसे ऑप्टिमल सीक्वेंसेस में सारे सीक्वेंसेस को ले लो, और उसमें जिसमें भी सबसे लार्जेस्ट वैल्यू आती है वो लार्जेस्ट वैल्यू रिटर्न करनी है। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन विद टेस्ट केस। टेस्ट केस क्या है, N10 है, रेस्ट्रिक्शंस 3 1 8 1 है। इसका मतलब थर्ड इंडेक्स पे जो वैल्यू होने वाली है, फिर थर्ड पोजीशन पे जो वैल्यू होने वाली है, दैट कैन नॉट एक्सीड 1। एट द सेम टाइम वॉट एवर इज एट द एट्थ पोजिशन, दैट कैन ऑल्सो नॉट एक्सीड 1। ठीक है, इसका मतलब थर्ड और एट्थ पोजीशन पे 1 या 1 से नीचे का नंबर रहना चाहिए। ठीक है, और डिफरेंस आ रहा क्या है, 2 2 3 1 4 5 1 5 2। ठीक है, अब मैं अपना टाइम इसमें वेस्ट नहीं करूंगा कि तुम्हें पूरा सीक्वेंस बना के दिखाऊं, डायरेक्टली एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है उससे समझते हैं। मान लो उन्होंने एक ऑप्टिमल सीक्वेंस बनाया है 0 2 4 1 2 6 2 1 1 3। अब देख लेते हैं, पहला डिफरेंस 2 है, और पहला जो डिफरेंस है बेसिकली 0 से 2 के बीच में भी 2 है। सो ये डिफ सेटिस्फाई कर रहा है, और इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं था। ठीक है, पहले रिस्ट्रिक्शंस को देख लेते हैं। थर्ड पोजीशन पे क्या है, थर्ड इंडेक्स पे बेसिकली, थर्ड इंडेक्स पे 1 से बड़ी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो थर्ड इंडेक्स पे देख लो 1 से बड़ी वैल्यू नहीं है। इन अ सिमिलर वे जो एर्थ इंडेक्स है उस पे 1 से बड़ी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, इसलिए 1 वहां पर 1 या 1 से नीचे है, फिर बेसिकली 1 ही है। ठीक है, और अगर आप इन सब के बीच का डिफरेंस निकालोगे, यू विल सी कि हर एक इंडेक्स पे ये जो डिफरेंस एरे के जो रेस्ट्रिक्शन गिवन है वो फुलफिल हो रहे हैं। सो इस पूरे सब सीक्वेंस में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इस पूरे सीक्वेंस में, वो है 6, राइट? वो है 6, दैट इज वाई यू विल रिटर्न 6। ठीक है, ऐसे ही आप अगर इसके लिए जाओगे एग्जांपल नंबर 2 में, एंड वी हैव ओनली वन रिस्ट्रिक्शन कि थर्ड इंडेक्स पे वैल्यू कैन नॉट एक्सीड 2, तो आप देख सकते हो थर्ड इंडेक्स पे 2 ही है। ठीक है, एंड देन द डिफरेंस एरिया इज गिवन। डिफरेंस एरिया को फुलफिल करना है, करते हुए द मैक्सिमम नंबर पॉसिबल इज 12। अच्छा, अब एक चीज तो क्वेश्चन पढ़ने का आपको मालूम पड़ गई होगी, दैट इट्स नॉट नेसेसरी कि वी ऑलवेज हैव एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपका जो सीक्वेंस बने दैट इज ऑलवेज, क्योंकि सबसे पहले दिमाग में लोगों को तुरंत ही आया होगा कि पहला नंबर 0 है भाई, और हमें मैक्सिमम नंबर बनाना है, और डिफरेंस एरिया गिवन है, तो सबको प्लस करते जाओ, प्लस प्लस करते 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 हमारा आखिरी नंबर सबसे बड़ा हो जाएगा भाई, सिंपल सी बात है। ठीक है, बट अब ये सोचो कि जो रिस्ट्रिक्शन वाला खेल है उसने सारा काम बिगाड़ दिया। ठीक है, बिकॉज वेन वी आर पुटिंग रिस्ट्रिक्शन वी आर एक्चुअली लिमिटिंग आवर सेल्स कि हम कितना बढ़ा सकते हैं। तब भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी एक सवाल उतना कठिन नहीं होता है। अभी इसको देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, इस केस में आंसर आ जाएगा 12, राइट? लेट्स रीड द कंस्ट्रेंट्स। द साइज ऑफ द एरे कैन गो अप टू द पावर ऑफ 5। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन का साइज सिंपल सी बात है, माइनस 1 से लेकर -1 तक का साइज है। ठीक है, सब पे रेस्ट्रिक्शन नहीं रख रहे हैं। सब पे रेस्ट्रिक्शन क्यों नहीं रख रहे हैं, क्योंकि हमको पहले पता है कि A ऑफ 0 तो 0 ही रहने वाला है, उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है कि A ऑफ 0 विल ऑलवेज बी 0, राइट? उसके बाद ठीक है, 2 लेंथ का, इसमें IDX और मैक्सवेल होगा। IDX विल रेंज फ्रॉम 1 टू लेस देन n अगेन, जो कि सिंपल सी बात है, 0th इंडेक्स पे ऑलरेडी वैल्यू डिफाइंड है, उसको कवर नहीं कर रहे। मैक्सिमम वैल्यू कैन गो अप टू द पावर ऑफ 6। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अगेन मैं वही रिपीट करूंगा जो मैंने पिछले क्वेश्चन में रिपीट किया था, बिकॉज वी आर गोइंग टू डील विद सम्स। ठीक है, क्योंकि डिफरेंस आ रहे हैं तो बेसिकली हम अपना नंबर जो है वो सम के फॉर्म में बनाते जाएंगे, राइट? क्योंकि डिफरेंस आ रहे हैं तो प्रीफिक्स सम के फॉर्म में हमारे नंबर बनेंगे, राइट? दैट इज बाय ऑलवेज टेक लॉन्ग लॉन्ग, पहले से लॉन्ग लॉन्ग ले लो, रोना नहीं पड़ेगा।
ठीक है। एंड देन डिफरेंस लेंथ पता है क्योंकि n माइनस वन ही होगा, अगर n नंबर्स है तो n पेयर्स ऑफ डिफरेंस बनेंगे। एंड डिफ ऑफ आई एट ईच पॉइंट कैन गो अप टू 10, जो कि छोटा नंबर है, कोई बड़ा नंबर नहीं पर छोटा नंबर ही है। ठीक है, बट स्टिल हम इसको थोड़ा नजरअंदाज करते हैं, इसको बहुत तूल नहीं देंगे। ठीक है, क्योंकि ये उतना रिलेवेंट नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, छोटा डिफरेंस है। ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी लॉन्ग लॉन्ग के लिए बोल दिया है, इसलिए अगर ये कल को 100 हो जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, द वैल्यूज ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑफ आई ऑफ जीरो आर यूनिक। ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस ऑफ आई ऑफ जीरो यूनिक है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक इंडेक्स पे दो रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं, एक इंडेक्स पे एक ही रिस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा। राइट, ओके। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसको करना कैसे चाहिए। ठीक है, आई होप सबको स्क्रीन दिख रहा है। ग्रेट, ओके। सो वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। अब ऐसे समझो मेरे पास सीक्वेंस है ए ऑफ जीरो, ए ऑफ वन, ए ऑफ टू, ऐसे करते करते ए ऑफ थ्री, मान लो ये ए ऑफ एन माइनस वन तक पूरा सीक्वेंस मुझे बनाना है। ठीक है, यहाँ पर मुझे ए ऑफ जीरो ऑलरेडी जीरो गिवन है। उसके बाद मुझे क्या है, डी वन गिवन है, डी जीरो आई विल से डी जीरो, देन डी वन, देन डी टू, देन डी थ्री, ऐसे करते करते डी एन माइनस टू होगा। करेक्ट, डी एन माइनस टू क्यों होगा, सिंपल सी बात है, एन माइनस वन डिफरेंस पेयर्स बनते हैं। यहाँ पर डी जीरो इज बेसिकली ए वन माइनस ए जीरो का एब्सोल्यूट डिफरेंस। रिमेंबर, इट्स एब्सोल्यूट डिफरेंस, इट्स नॉट डिफरेंस। एब्सोल्यूट का मतलब है कि भाई जो जो सम है, जो बीच का ए वन माइनस ए जीरो है, वो नेगेटिव भी हो सकता था, पॉजिटिव भी हो सकता था, पर हम उसका सिर्फ पॉजिटिव वाला पार्ट ले रहे हैं। ठीक है, दैट मीन्स बेसिकली कि एब्सोल्यूट ले रहे हैं। ठीक है, ऐसे डी वन जो होता है वो क्या है, दैट इज बेसिकली एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन ए टू माइनस ए वन। ठीक है, इस तरीके से ये है। नाउ अब सिंपल सी बात है, दिमाग में क्या आता है, ऐसा करो। ठीक है, हमें रेस्ट्रिक्शन दे रखा है, राइट, याद याद है। अब क्या करो, फॉर एग्जाम्पल कल को मैं बस ऐसे मान लेता हूँ कि मेरे पास मान लो पांच ही वैल्यूज थी। ठीक है, पांच ही का ही सीक्वेंस बनाना था। ठीक है, मान लो ए जीरो, ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर, मुझे ये पांच वैल्यूज को बनाना था। ठीक है, सबसे पहले ये तो जीरो है तो इसको तो बनाना ही नहीं है। राइट, और मेरे पास यहाँ पर क्या, डी जीरो होगा, डी वन होगा, इसके बीच में डी टू होगा और ये डी थ्री होगा, ऐसे करके। राइट, ये तीन डिफरेंसेस होंगे। ठीक है, अब मान लो मैं रिस्ट्रिक्शंस लगाता हूँ। ठीक है, मैं रिस्ट्रिक्शन देता हूँ किस किस पे, ए टू पे लगाता हूँ। ठीक है, ए टू पोजिशन पे लगाता हूँ, इसको मान लो कह देता हूँ एम टू। ठीक है, और ऐसे ही ए फोर पे भी लगाता हूँ एम फोर। ठीक है, ये दो रिस्ट्रिक्शन मैंने लगा दिए। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, वी हैव टू मेक द मैक्सिमम पॉसिबल सम, मैक्सिमम पॉसिबल सीक्वेंस, इंटीजर इन द सीक्वेंस। जो भी सबसे बड़ा टर्म बन सकता है हमारे इस पूरे सीक्वेंस में, हमें वो ट्राई करना बनाने की। तो बेसिक लॉजिक और बेसिक इंट्यूशन तो यही कहता है कि सम लेते जाओ, जितने भी डिफरेंसेस है ना बेसिकली उनका सम लेते जाओ। तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट सिंपल सी बात है, हर एक सम, हर एक डिफरेंस जो है वो तो पॉजिटिव है, उसको ऐड ऑन करते जाओगे लगातार, तो तुम्हारी डिफरेंस की प्रॉपर्टी तो प्रिजर्व रहेगी। क्योंकि ऐसे समझो, फॉर एग्जाम्पल मेरा टर्म, पहला टर्म ए जीरो है, फिर अगला टर्म में ए प्लस ए जीरो प्लस ए वन ले लूँ। ठीक है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा ना, सॉरी, नॉट ए वन बिकम्स व्हाट, ए वन बिकम्स ए जीरो प्लस डी जीरो। फिर उसके बाद मैं मान लूँ ए टू इज बेसिकली ए वन प्लस डी वन। ठीक है, ऑप्टिमल स्ट्रेटजी तो यही है हमेशा। ठीक है, हमारे साइड से द ऑप्टिमल स्ट्रेटजी इज ऑलवेज दिस ओनली। हम ट्राई करेंगे कि यही बन, कि जो भी पॉसिबल हो सकता है हम ये से बना दे, राइट। पर पॉइंट ये है कि मेरे पास रेस्ट्रिक्शन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करो, एक एरे डिक्लेयर कर लो। एक एरे डिक्लेयर कर लो पांच साइज का, जैसे मैंने यहाँ पर डिक्लेयर कर लिया है। ठीक है, नाउ व्हाट वी डू, नाउ व्हाट वी डू, इनिशियली क्या करो, इनिशियली जितने भी बाकी इंटीजर्स हैं, जितने भी इंटीजर्स हैं, ठीक है, उन पे कोई बाय डिफॉल्ट बड़ी सी वैल्यू रख दो, बहुत बड़ी वैल्यू। ठीक है, बहुत बड़ी वैल्यू कैसी होती है, जैसे कि इंट मैक्स। ठीक है, इंट मैक्स, इसको अभी के लिए मैं मान लेता हूँ, कुछ वेरिएबल नाम दे देता हूँ। इसको लिख देते हैं थोड़ी देर के लिए के मान लेते हैं, के नहीं, कुछ एल ले देते हैं, एल, कैपिटल एल। ठीक है, अब यहाँ पर एल, हर जगह एल भर दिया है। ठीक है, ये इंट मैक्स जो होता है वो तुम्हारा टू की पावर 31 माइनस वन होता है। ठीक है, चाहे तो लॉन्ग लॉन्ग मैक्स भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैंने मान लो ये भर दिया। अब क्या करो, अब क्या करो, वी नो दैट वैल्यूज एट ए इंडेक्स ए टू एंड ए फोर आर रिस्ट्रिक्टेड बाय एम टू एंड एम फोर। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे जो ए वन की ए टू की वैल्यू है, ठीक है, दैट कैन नॉट बी बिगर देन एम टू, दैट कैन नॉट बी बिगर देन एम टू। एट द सेम टाइम द वैल्यू एट इंडेक्स ए फोर कैन नॉट एक्सीड एम फोर, वो एम फोर से बड़ी नहीं हो सकती। इसका मतलब ए टू और ए फोर के लिए बेस्ट चॉइस जो हमारे पास है अभी के लिए, ठीक है, अभी के लिए हमारे पास जो बेस्ट चॉइस है, गिवन द restrictions इज व्हाट, गिवन द restrictions, it will become, it will become what, m2 और m4, क्योंकि सिंपल सी बात है, इससे बड़ा बन नहीं सकता। करेक्ट, बट तुमने m2 m4 डाल दिया इस चाहत में कि तुम्हारा भाई a2 मैक्सिमाइज और a4 मैक्सिमाइज हो जाए, क्योंकि वही मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है उस एलिमेंट के लिए। ठीक है, पर क्या ये इंडेक्स को फुलफिल कर रहा है, क्या ये इंडेक्स को फुलफिल कर रहा है, ये तो हमने देखा ही नहीं। तो चलो अब इसको देखेंगे कैसे। देखो, हमारे पास ये सेटअप अभी तक हमारा रेडी है। ठीक है, अब इसको आगे देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले तो ये देखो,
कि यहाँ पर जो A1 वाला टर्म है, A1 वाला टर्म है, उस पे अभी कोई वैल्यू डिफाइंड है, कोई भी वैल्यू, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो हमारी ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी क्या थी कि लगातार डिफरेंस डिफरेंस वाला जो एरे है उसका सम लेते रहो, उसका लगातार सम लेते जाओ। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, बाय डिफॉल्ट जो हमारा A1 है, हम पहले एक फॉरवर्ड पास कर रहे हैं। ठीक है, इसको मैं लिख रहा हूँ फॉरवर्ड पास। ठीक है, जब हम यहाँ लेफ्ट से राइट जाने वाले हैं अपने एरे पे। ठीक है, तो A0 तो अपना जीरो है, वो तो फिक्स है, सिंपल सी बात है। उसके बाद अपन जब A1 पे आते हैं तो A1 की वैल्यू अभी कुछ दी नहीं गई है। ठीक है, इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, तो A1 की वैल्यू क्या हो सकती है, A1 की वैल्यू कितनी जा सकती है, सिंपल सी बात है, वी हैव अ कंस्ट्रेंट ऑफ डिफरेंस। एट द सेम टाइम हमको अपने एलिमेंट्स जो हैं उनको सबसे बड़ा बनाना है, वी हैव टू मैक्सिमाइज द एलिमेंट्स इन द सीक्वेंस, तभी जाके तो हमें लार्जेस्ट वैल्यू मिल पाएगी। राइट, तो हम क्या करेंगे, इट इज बेस्ट टू डिक्लेयर A1 एज A0 प्लस D0, है कि नहीं। इट इज बेस्ट टू टेक A0 प्लस D0। ठीक है, क्योंकि तुम्हारा सिंपल सी बात है, जो तुम्हारा A1 है उस पर कोई वैल्यू भी रिस्ट्रिक्शन तो लगाई नहीं गई है, तो उसको तो बस क्या, उसको तो बस एक ही कंडीशन फुलफिल करनी है कि उसका जो डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिव टर्म्स है वो बस तुम्हारा सही रहे, वो बस तुम्हारा सही रहे। ठीक है, अब ये फॉरवर्ड पास कर रहा है, याद रखो फॉरवर्ड पास से हमें पूरा आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, बस देखते जाओ, अभी पहले इस पे ध्यान देते हैं। तो A0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A0 को हम A1 को हम क्या कर देंगे, A0 प्लस D0। तो ये भाई साहब जो है हमारे, वो कट के बन जाएंगे, वो कट के बन जाएंगे क्या, A0 प्लस D0। बहुत बढ़िया। अब हम आते हैं A2 पे। अब जब हम A2 पे आते हैं तब हमारी आती है नेक्स्ट दिक्कत। A2 की वैल्यू अभी M2 है। बहुत बढ़िया, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है। पर क्या जरूरी है कि M2 माइनस A1 जो अभी वैल्यू हमारी है, दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू D1, ये इसका एब्सोल्यूट वैल्यू। हमें क्या था, हमें डिफरेंस भी तो कंप्लीट करना था ना, हमें क्या करना था, हमें डिफरेंस को भी तो देखना था ना, कि उतना वो जो डिफरेंस का क्राइटेरिया है वो भी फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, वो भी फुलफिल जो है वो होना चाहिए। ठीक है, तो पॉइंट वही आता है यहाँ पर कि तुमने A2 पे रिस्ट्रिक्शन तो लगा रखा था, M2 तो लगा रखा था, लेकिन क्या ये वो जो रिस्ट्रिक्शन है वो फुलफिल कर रहा है कि नहीं, क्या है वो रिस्ट्रिक्शन जो है वो फुलफिल कर रहा है कि नहीं। हो सकता है कि तुम्हारा जो M2 है, हो सकता है कि तुम्हारा जो M2 है वो काफी ज्यादा बड़ा है A1 से, सच दैट M2 माइनस A1 मान लो ग्रेटर देन D1 हो जाएगा। ऐसे केस में M2 इज नॉट द करेक्ट चॉइस फॉर दिस इंडेक्स, राइट। M2 तुम नहीं रख सकते यहाँ पर, कोई छोटी वैल्यू रखनी पड़ेगी। सो वो छोटी वैल्यू क्या होगी, वो छोटी वैल्यू क्या होगी, द ऑप्टिमल वैल्यू एट A2, द ऑप्टिमल वैल्यू एट इंडेक्सेस जहां पर रिस्ट्रिक्शन ऑलरेडी गिवन है। ये क्या हो गया, हाँ, जहां पर ऑलरेडी रिस्ट्रिक्शन गिवन है, वहां पर क्या करोगे, वहां पर सिंपल सा इतना लिखोगे कि वी विल टेक एट एनी पॉइंट मिनिमम ऑफ जो भी A2 की अभी वैल्यू है, जो कि बाय डिफॉल्ट रिस्ट्रिक्शन की वजह से M2 होगी, एंड A0 सॉरी A1 प्लस D1। ठीक है, अब इनमें से जो भी मिनिमम हो, ठीक है, A1 प्लस D1 जो है वो हमारी इस कंडीशन को फुलफिल कर देगी। क्या, A2 माइनस A1 इक्वल टू D1। ठीक है, अगर मान लो ये छोटा है होगा तो A2 जो हमारा जो होगा वो क्या बन जाएगा, A1 प्लस D1। ठीक है, एट द सेम टाइम, क्योंकि क्योंकि तुम्हारा मिनिमम ऑफ A2 एंड A प्लस D1 जो है वो A1 प्लस D1 आ रहा है, और A2 की बाय डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू क्या थी, M2 थी। दिस मीन्स कि A1 प्लस D1 जो होगा दैट वुड बी लेस देन M2। ठीक है, इसका मतलब इसका रिस्ट्रिक्शन भी फुलफिल हो रहा है, एट द सेम टाइम डिफरेंस वाली चीज भी फुलफिल हो रही है। अब ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारा जो A1 प्लस D1 हो, तुम्हारा जो A1 प्लस D1 हो दैट बिकम्स बिगर देन व्हाट M2। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो सिंपल सी बात है M2 ले लो भाई। ठीक है, तब तो बेटर चॉइस M2 है, क्योंकि अगर ये बड़ा है, A1 प्लस D1 इज बिगर देन M2। ठीक है, तो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप M2 को ले लो। क्यों, इन दैट केस M2 माइनस A1 जो भी होगा इसका एबीएस वैल्यू, दैट वुड श्योरली बी लेस देन D1। ठीक है, दैट विल श्योरली बी लेस देन D1। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ। अगर तुम्हारे पास दो वैल्यू है, रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, तो पहले चेक करो कि तुम्हारे पास दो ऑप्टिमल स्ट्रेटजी है, रिस्ट्रिक्शन तो लगा ही हुआ है, तो रिस्ट्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल क्या है, M2 है, तुमने वो उठा ली। उसके बाद क्योंकि तुम्हें डिफरेंस वाला रिस्ट्रिक्शन, जो डिफरेंस वाला कंडीशन दिया हुआ है वो भी पूरा करना है, तो जो ऑप्टिमल एलिमेंट फॉर दिस इंडेक्स इज व्हाट, A1 प्लस D1। ठीक है, अब M2 चूज करना है कि A1 प्लस D1 चूज करना है। ठीक है, अब खुद समझो, अगर तुम्हारा A1 प्लस D1 जो है, ओके, दैट इज बिगर देन M2, अगर वो M2 के बाहर जाए तो तुम्हारा क्या होगा, जो M2 वाला रिस्ट्रिक्शन है वो फुलफिल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हमको एक स्मॉलर नंबर चूज करना चाहिए, राइट। अब सिंपल सी बात है, जब तुम स्मॉलर नंबर चूज करोगे तो बाय डिफॉल्ट अपने आप जो डिफरेंस वाला कंडीशन है वो भी फुलफिल हो रहा होगा, वो भी अपने आप फुलफिल हो रहा होगा। और जो A1 प्लस D1 अगर बिगर देन M2 है, तो सबसे बेस्ट चॉइस क्या है कि सीधे M2 को ले लो। अपने आप तुम्हारा डिफरेंस बिटवीन M2 माइनस A1 होगा, दैट विल 100% बी लेस देन D1। ठीक है, और बाय चांस अगर मान लो ऐसा होता है कि M2 बड़ा है और A1 प्लस D1 छोटा है, इन दैट केस क्योंकि हमको पता है कि हमारा जो डिफरेंस है हमें वो क्लियर रखना है। ठीक है, उसको हमें D1 रखना है, तो बेस्ट चॉइस A2 के लिए क्या है, A1 प्लस D1 है। ठीक है, इससे डिफरेंस भी हमारा फुलफिल हो रहा है, एट द सेम टाइम क्योंकि A1 प्लस D1 लेस देन इक्वल टू M है, तो वो तो हमारा ऑलरेडी फुलफिल हो ही रहा है। सो इन दिस वे वी विल कीप ऑन डूइंग आवर फॉरवर्ड पास। ठीक है,
वी विल कीप ऑन डूइंग आवर फॉरवर्ड पास। इस तरीके से क्या होगा, हमारा फॉरवर्ड पास में जो हर एक इंडेक्स पे जो कंडीशन है वो फुलफिल होती जाएगी लगातार। सो व्हाट वी विल डू इन फॉरवर्ड पास, जस्ट कीप ऑन डूइंग व्हाट, लेट से इसको मैं सीक्वेंस बना लेता हूँ। सीक्वेंस ऑफ आई वुड जस्ट बी मिनिमम ऑफ सीक्वेंस ऑफ आई कॉमा सीक्वेंस ऑफ आई माइनस वन प्लस डिफरेंस ऑफ आई वुड से आई माइनस वन ही रख लो। ठीक है, फिर डिफरेंस ऑफ आई रख लो थोड़ी देर के लिए। ठीक है, सिंपल सी बात है, आपको ये करते जाना है। अच्छा, ये फॉरवर्ड पास करने से पहले जो रिस्ट्रिक्शन एरे था, ठीक है, उसके रिस्ट्रिक्शन को अपडेट कर देना है, उसके बाद फॉरवर्ड पास चलाना है। ठीक है, बट बट नाउ हियर कम्स द प्रॉब्लम कि ये फॉरवर्ड पास पूरा अकेले काम क्यों नहीं कर पाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट से मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास एक डिफरेंस एरे गिवन है, वो है 10,2, और मान लो मेरा एन है 3। ठीक है, अब इसमें देखो क्या होगा, इसमें होगा बहुत गजब का घोल हो जाएगा। देखना कैसे। अब ए जीरो तो मेरा जीरो है, ठीक है, और मान लो इसमें रेस्ट्रिक्शन है, वो मान लो तुम्हारा सेकंड इंडेक्स पे है। ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर एन 3 है तो 0 1 2 बनेगा। मान लो सेकंड इंडेक्स पे रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है, और वो क्या है कि द वैल्यू एट सेकंड इंडेक्स, ठीक है, रेस ऑफ 2 इज बेसिकली व्हाट, जीरो। यानी कि सेकंड इंडेक्स में जो वैल्यू है वो जीरो से बड़ी नहीं हो सकती। ठीक है, ये जो ये वाला इंडेक्स है, इस पे वैल्यू जो है वो जीरो से बड़ी नहीं हो सकती। ठीक है, ये रिस्ट्रिक्शन लगा दिया मैंने। अब क्या होता है, सबसे पहले अगर मान लो मैं ये अपना फॉरवर्ड पास चलाता हूँ, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर जीरो रख लिया। ठीक है, यहाँ पर जीरो रख लिया। उसके बाद क्या कहते हैं, यहाँ पर जो तुम्हारा रिस्ट्रिक्शन की वजह से यहाँ पर भी जीरो लगा दोगे, करेक्ट, यहाँ पर भी तुम जीरो लगा दोगे, करेक्ट। अब तुम आते हो अपना फॉरवर्ड पास शुरू करते हो। जब फॉरवर्ड पास शुरू करते हो तो पहला डिफरेंस क्या था, पहला डिफरेंस था 10। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अभी वन जो था उस पर तो कोई रिस्ट्रिक्शन था नहीं, तो द बेस्ट चॉइस इज बेसिकली 10, यहाँ पर तुम 10 लिख दो। ग्रेट, बढ़िया। उसके बाद जब तुम यहाँ आते हो देन व्हाट विल हैपन, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन जीरो का ऑलरेडी दिया हुआ है। सो यू विल टेक मिनिमम ऑफ मिनिमम ऑफ सीक्वेंस ऑफ आई एंड सीक्वेंस ऑफ आई माइनस वन प्लस डिफरेंस ऑफ आई। ठीक है, अभी सीक्वेंस ऑफ आई की वैल्यू क्या है, जीरो है। ठीक है, जीरो है, एंड डिफरेंस ऑफ आई क्या है, डिफरेंस ऑफ आई टू है। तो सिंपल सी बात है, क्या कहते हैं, पिछला टर्म क्या है, 10 राइट। तो देखो, सीक्वेंस ऑफ आई की वैल्यू अभी क्या है, जीरो है, और सीक्वेंस ऑफ आई माइनस वन जो है उसकी वैल्यू 10 है, और 10 प्लस डिफरेंस जो अभी वाला है वो 2 है। तो सिंपल सी बात है, इन दोनों का मिनिमम लोगे तो यहाँ पर जीरो ही रहेगा, यहाँ पर जीरो ही रहेगा। बट तुमने एक चीज नोटिस करी यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हुआ, यहाँ पर प्रॉब्लम ये हुआ यहाँ पर प्रॉब्लम ये हुआ कि पहले दो इंडेक्सेस में जो डिफरेंस की कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है, लेकिन जो लास्ट के दो इंडेक्सेस हैं ये वाले, इनमें डिफरेंस तो 2 होना चाहिए था, यहाँ पर डिफरेंस 10 आ रहा है। ये होता है फॉरवर्ड पास में दिक्कत। अगर तुम अकेले फॉरवर्ड पास चलाओगे तो ये प्रॉब्लम होगा। हमने फॉरवर्ड पास में मिनिमाइज तो किया, लेकिन हमने डिफरेंस के लिए कंप्लीटली हम नहीं कर पाए कि भाई क्या वो कंप्लीटली सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। ठीक है, यहाँ पर वही दिक्कत हो गई। तो इसीलिए जस्ट बिकॉज, अब देखो यहाँ पर डिफरेंस 2 होना चाहिए था, बट डिफरेंस यहाँ पर 10 है। इसको सही करने के लिए हम एक बैकवर्ड पास भी चलाएंगे, ठीक है। फॉरवर्ड पास में हमने ऑलरेडी जितनी वैल्यू फिट कर सकते थे, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इट्स बेसिकली फॉरवर्ड पास इज व्हाट, कि यू आर गिवन अ स्टेप, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट दैट यू कैन रीच फ्रॉम दिस स्टेप, ये आपका फॉरवर्ड पास है। और बैकवर्ड पास क्या कहते हैं, दैट यू आर गिवन एन अप सीलिंग, यू आर गिवन अ सीलिंग, आप कितना नीचे जा सकते हो या फिर कैसे कितना नीचे जा सकते हो, बेसिकली दैट इज फॉर बैकवर्ड पास। ठीक है, अब देखो बैकवर्ड पास में क्या करोगे, आप उल्टा शुरू करोगे अपना इटरेशन। ठीक है, आप बेसिकली A2 A1 A0 जाओगे। ठीक है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर भी वही चीज करनी है जो ऑलरेडी वैल्यूज दे रखी हैं। A2 पे सिंपल सी बात है, जीरो है, जीरो ही रहेगा। अब A1 पे क्या चेक करोगे, A1 पे यू विल चेक बेसिकली मिनिमम ऑफ A1 कॉमा A2 व्हाट, A2 प्लस D1, A2 प्लस D2। अब ये करके देखोगे। ठीक है, अब A1 की वैल्यू क्या थी, 10 थी, A2 जीरो है, जीरो प्लस टू। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, मुझे ये बताओ, जो सेकंड इंडेक्स है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर अब क्या होगा, मिनिमम ऑफ 10,2 क्या होता है, मिनिमम ऑफ 10,2 होता है 2। तो यहाँ पर जो A1 की वैल्यू फॉरवर्ड पास के बाद 10 थी, अब वो अपडेट होके 2 बन जाएगी। ठीक है, इन अ सिमिलर वे, जब हम उल्टा और जाएंगे A0 पे, तो A0 तो वैसे भी जीरो होता है, उसको तो वैसे भी छेड़ना नहीं है, छूना नहीं है, फिर अगर छू भी लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब A0 के लिए क्या होगा, A0 की वैल्यू बाय डिफॉल्ट जीरो है, और हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, मिनिमम ऑफ जीरो कॉमा 2 प्लस 10। ठीक है, मिनिमम ऑफ 2 प्लस 10 कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, डायरेक्ट समझ में आ गया कि ये जीरो रहेगा। तो फाइनल सीक्वेंस जो हमारा फॉरवर्ड पास के बाद 0 10 0 बन रहा था, जो कि गलत था, अब वो अपडेट होके दो पास के बाद 0 2 0 बन चुका है, एंड दिस सक्सेसफुली fulfills all the four conditions which are given in the question।
और इसमें मैक्सिमम नंबर क्या है, 2 आ रहा है, ये उठा के रिटर्न करा दो, रिटर्न योर आंसर। बस इतना करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, इट्स बेसिकली अ क्वेश्चन ऑफ लोकल मिनिमा एंड मैक्सिमा। अगर आप एक तरीके से समझो, द क्वेश्चन इज बेसिकली बेस्ड ऑन लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा। ठीक है, जो आपने शायद अपने 11th 12th में या फिर कभी पढ़ा हो। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन में देखते थे कि एक कोई फंक्शन ऐसा है जिसमें मल्टीपल मैक्सिमाज आते हैं बीच बीच में, जैसे वाइब्रेटिंग फंक्शंस होते हैं, या फिर तुम एक बहुत अच्छा एग्जांपल मान लो डैम्पिंग फंक्शंस का। ठीक है, जिसमें मल्टीपल टाइम्स जो होते हैं यू गेट लोकल मैक्सिमाज और लोकल मिनिमाज। ठीक है, तो उस पर डिपेंडेंट एक क्वेश्चन है एक्चुअली। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू द कोड पार्ट सो इट विल मेक थिंग्स मोर क्लियर। ठीक है भाई, क्या कर रहे थे, देखो। सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले अपने सीक्वेंस को डिफाइन करने के लिए एक mx एरे बना लिया। ठीक है, उसके बाद इनिशियल फर्स्ट टर्म जो है, जीरो टर्म जो है वो जीरो है, जैसे कि हमको गिवन है। नाउ व्हाट वी डू, हम रेस्ट्रिक्शन को अप्लाई करते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट देखो मैंने लॉन्ग लॉन्ग मैक्स दे रखा था। तो व्हेन यू टेक द मिनिमम ऑफ द रेस्ट्रिक्टेड वैल्यू विच इज बेसिकली मैक्स वैल्यू, एंड द करंट वैल्यू, जो कि करंट वैल्यू उसकी क्या है, लॉन्ग लॉन्ग मैक्स होगी, और जो रिस्ट्रिक्शन है वो मैक्स वैल्यू है। सिंपल सी बात है, मैक्स वैल्यू छोटा ही होगा उससे। ठीक है, तो पहले आप हर जगह अपनी रिस्ट्रिक्शन प्लेस कर दोगे। ठीक है, एवरीवेयर यू प्लेस योर रिस्ट्रिक्शंस जिस जिस इंडेक्स पे कही गई, क्योंकि वही उसके उस इंडेक्स के लिए मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, नाउ यू डू अ फॉरवर्ड पास। फॉरवर्ड पास में क्या करते हो, फॉर आई टर्म यू टेक द मिनिमम ऑफ एम एक्स ऑफ आई, या फिर प्रीवियस टर्म प्लस डिफरेंस ऑफ आई। अब देखो रिस्ट्रिक्शन अगर यहाँ पर होगा तो अपने आप चीजें अपडेट हो जाएंगी। दिस इज फॉर फॉरवर्ड पास। ठीक है, एंड एज आई सेड कि इससे फॉरवर्ड पास इज नॉट गोइंग टू गिव यू अ कंप्लीट आंसर। और मैंने एक एग्जांपल भी एच केस भी दिखा दिया कि कभी फेल कर जाएगा। फॉर दैट बैकवर्ड पास ऑल्सो नेसेसरी, जस्ट टू कंफर्म कि हम लेफ्ट और राइट दोनों साइड से बराबर तरीके से चले हैं। ठीक है, अगर एक साइड पे को रखेंगे तो बायसनेस आएगा और वैल्यूज गलत हो जाएंगी। वी एनकाउंटेड फ्रॉम बोथ द साइड्स वन बाय वन, सो दैट वी हैव फाइनली एन आंसर दैट कवर्स और फुलफिल्स द कंप्लीट कंडीशन। एक तरीके से समझ लो कि तुमने एक साइड से चलाया, तुम्हारे पास एक रेंज ऑफ आंसर आया, उसके बाद तुमने थोड़ी और चिजलिंग करी, थोड़ी और शार्पनिंग करी और धार दी अपने आंसर पे, सो यू गेट अ मोर रिस्ट्रिक्टेड, अ मोर ट्यून्ड, अ मोर फाइन ग्रेन्ड आंसर। ठीक है, इसको ऐसे समझ लो। ठीक है, तो इसलिए बैकवर्ड पास चलाया। ठीक है, बैकवर्ड पास में भी कुछ नहीं किया, देखो क्या किया। वही जैसे मैंने बताया था कि वैल्यूज का डिफरेंस, वैल्यूज का सम लेके चलते गए, एंड इन दिस वे वी विल फॉर्म आवर सीक्वेंस। आखिरी में सिंपल सी बात है, वी वांट टू रिटर्न द मैक्सिमम वैल्यू। तो भाई मैक्सिमम ले लो सबसे, और जो भी मैक्सिमम आंसर आया उसको रिटर्न करा दो। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर एन, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑल्सो ऑर्डर एन। ठीक है, अगर तुम्हें इससे बेटर कोई अगर सोल्यूशन है तो उसे कमेंट जरूर डालना। ठीक है, आई ऑल्सो वाज थिंकिंग कि क्या इसको बिना किसी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम तो लगना ही है, पर क्या बिना किसी स्पेस के कर सकते हैं, तो श्योरली उसे कमेंट करो। अगर तुम्हें ऐसा कोई सोल्यूशन तुमने किया है अपने कॉन्टेस्ट में, तो श्योर उसको डिस्कस करो। ठीक है, सो विद दिस वी हैव कंप्लीट द फर्स्ट 3 प्रॉब्लम्स, जैसा कि मैंने कहा था कि कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। नाउ वी मूव टू द फाइनल क्वेश्चन ऑफ द कॉन्टेस्ट, जो कि हमारा थोड़ा फाड़ू क्वेश्चन था। ठीक है, ठीक ठाक क्वेश्चन था, पर हाँ फाड़ू क्वेश्चन तो था। इसको समझने में आई थिंक काफी टाइम चला गया होगा लोगों का। ठीक है, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट, हाँ, ताकि मुझे भी समझाना ही है। सो काउंट रूट्स टू क्लाइंब अ रेक्टेंगुलर ग्रिड। ओके, यू आर गिवन अ स्ट्रिंग ग्रिड, एरे ग्रिड ऑफ साइज n, ई वेर ईच स्ट्रिंग ग्रिड ऑफ i हैज लेंथ m। ठीक है, एक n क्रॉस m की स्ट्रिंग वाली ग्रिड दी गई है, सिंपल समझ लो। ठीक है, इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं थी, सिंपल सी कहते हैं कि n क्रॉस m की एक कैरेक्टर्स वाली ग्रिड दी गई है। ठीक है, जहाँ पर हर एक ग्रिड जो है n क्रॉस m की, जहाँ पर हर एक जो सेल पे वैल्यू है ग्रिड ऑफ i j है, वो या तो डॉट है या तो हैशटैग है। अगर डॉट है तो इसका मतलब वो सेल खाली है, फ्री है। अगर हैशटैग है तो इसका मतलब वो सेल ब्लॉक्ड है, दैट इज ब्लॉक्ड। नाउ you want to count the number of different routes to climb the grid, number of different routes to climb the grid. Each route must start from any cell in the bottom row and end in the top row. तो बेसिकली कोई भी हमें डिफरेंट अमाउंट ऑफ रूट्स काउंट करने हैं इस ग्रिड में, विच वी बेसिकली यूज टू क्लाइम। और एक रूट क्या होता है, इट बेसिकली स्टार्ट फ्रॉम एनी सेल इन द बॉटम रो एंड इट एंड्स एट अ सेल इन द टॉप रो, यानी रो जीरो में। रो n-1 से कोई भी सेल तुमने उठाया, वहां से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हुए तुम सबसे टॉप मोस्ट रो जीरो थ्रो पे जाओगे, तो दैट बेसिकली कॉन्स्टिट्यूट्स अ रूट। ठीक है, तो तुम्हें ऐसे पॉसिबल पाथ्स काउंट करने कितने होंगे। अब इन पाथ्स के ऊपर कंस्ट्रेंट भी है। ठीक है, जो रूट है इन पे कंस्ट्रेंट भी हैं, और वो कंस्ट्रेंट क्या होने पड़ते हैं, यू कैन ओनली मूव फ्रॉम वन अवेलेबल सेल टू अनदर अवेलेबल सेल, यानी कि डॉट से डॉट पे ही कूद सकते हो, डॉट से हैशटैग या बैक स्लैश पे नहीं जा सकते। ठीक है, हैशटैग पे नहीं जा सकते क्योंकि वो ब्लॉक्ड है। द यूक्लिडियन डिस्टेंस ऑफ ईच मूव इज एट मोस्ट डी, वेयर डी इज एन इंटीजर पैरामीटर गिवन टू यू। ठीक है, द यूक्लिडियन डिस्टेंस आपको पता ही है, दो सेल्स के बीच में क्या होती है, r1, c1, r2, c2, और डिफरेंस आपको पता है। अब यहाँ पर देखो पहली बार ऐसा कभी बहुत कम क्वेश्चन में तुम्हें देखना मिलता होगा, जो डिफरेंस है वो यूक्लिडियन के फॉर्म में दिया है। जनरली जब ग्रिड की बात कर रहे होते हैं ना, तो लोग मैनहट्टन डिस्टेंस के बारे में कहते हैं। मैनहट्टन डिस्टेंस इज बेसिकली द एब्सोल्यूट डिफरेंसेस बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, उसका सम होता है, तो वो इजी पड़ता है, पर यहाँ पर हमें यूक्लिडियन डिस्टेंस बोला है। ठीक है, तो हमारा जो नेविगेशन है वो थोड़ा बदल जाएगा। ठीक है, थोड़ा बदल जाएगा, तो वो समझो।
यहाँ पर हमें यूक्लिडियन डिस्टेंस दिया हुआ है कि इफ यू आर एट एनी सेल, तो तुम किसी और सेल पे जा सकते हो, किसी और सेल पे जा सकते हो जो कि तुमसे एट मोस्ट डी डिस्टेंस पे है। अगर डी से ऊपर किसी भी सेल का डिस्टेंस जा रहा है तो वहां पर नहीं कूद सकते, फिर वो चाहे अवेलेबल हो चाहे ना हो। इफ यू आर स्टैंडिंग एट अ सेल एंड यू वांट टू मूव टू अनदर अवेलेबल सेल, then that should be within at least a distance which should be, it should be within a distance of d। डी से अगर ऊपर डिस्टेंस जा रहा है यूक्लिडियन, तो फिर तुम उस सेल पे नहीं कूद सकते। ग्रेट। अब आते हैं अपने फोर्थ क्राइटेरिया पे। यू कैन नॉट स्टे ऑन द सेम रो फॉर टू कॉन्जिक्यूटिव टर्न्स। तुम सेम रो पे टू कॉन्जिक्यूटिव टर्न्स पे नहीं रह सकते। इसका मतलब क्या है कि तुम मान लो रो आई पे थे, मान लो आई रो पे थे, और तुमने मूव किया, तुम मान लो अपनी सेम रो में ही कहीं लेफ्ट राइट चले गए, ठीक है, और तुमने मान लो एक बार ऑपरेशन किया, उसके बाद तुम अगला ऑपरेशन जो है, जो अगला ऑपरेशन है, वो तुम लेफ्ट राइट वाला नहीं कर सकते। तुम सिर्फ अपनी सेम रो में, जिस भी रो में तुम हो, उसमें लेफ्ट या राइट सिर्फ एक बार कर सकते हो। उसके बाद तुम्हें ऊपर जाना ही पड़ेगा। ठीक है, क्या देखो क्या है, यू कैन नॉट स्टे ऑन द सेम रो फॉर टू कॉन्जिक्यूटिव टर्न्स। इफ यू स्टे ऑन द सेम रो इन अ मूव, in a move, and this move is not the last move, your next move must go to the row above। तो देखो, ज्यादा तुम अपनी रो में रहोगे, वो भी सिर्फ एक टर्न के लिए, मानो तुम अभी हो, तो तुम लेफ्ट या राइट चले जाओ, ये सिर्फ एक बार कर सकते हो। उसके बाद तुम्हें अपनी ऊपर वाली रो पे जाना ही पड़ेगा। सो रिमेंबर, हमारे पास दो टाइप के मूवमेंट्स हैं, या तो तुम टॉप पे जा सकते हो, ठीक है, या तो तुम लेफ्ट राइट जा सकते हो। बट तुम टॉप जो ऊपर वाली रो है उसमें हर बार जा सकते हो, बट जो लेफ्ट राइट वाला मूवमेंट है वो सिर्फ एक बार कर सकते हो। अगर तुमने किया, एक बार किया, उसके बाद तुम्हें टॉप जाना ही पड़ेगा। ठीक है, एक बार टॉप पे चले गए, फिर से तुम लेफ्ट राइट या टॉप जा सकते हो। ठीक है, सो इन अ वे यू कैन से, सो लेट्स से मैं आयत रो पे हूँ, सो आई कैन डू एल और आर, एंड देन आई हैव टू गो टू यू। आई हैव टू गो टू यू। एक बार मैं यू पे चला गया, फिर से मेरे पास एल या आर जाने का ऑप्शन है, या फिर मैं यू भी जा सकता हूँ। हो सकता है मैं यू से यू चला जाऊँ, कि मैं ऊपर गया फिर वहां से फिर से ऊपर चला गया। ठीक है, बट अगर मैं लेफ्ट या राइट गया हूँ, तो मैं लेफ्ट राइट से फिर से लेफ्ट राइट नहीं कर सकता। लेफ्ट राइट में एक टाइम पे सिर्फ एक ही बार कर सकता हूँ। बट अप एंड डाउन, अप जो है वो मैं मल्टीपल टाइम्स लगातार कर सकता हूँ, क्योंकि जो हमारा रूट है वो भी ऐसा ही है। रूट इट इज बेसिकली कि हर बार ऊपर ही जा रहे हो। ठीक है, ग्रेट। रिटर्न एन इंटीजर डिनोटिंग द नंबर ऑफ सच रूट्स। ठीक है, सिंस द आंसर में बी वेरी लार्ज, रिटर्न मॉडल 10 पावर ऑफ 9 प्लस 7। ठीक है, ग्रेट। अब पहले जरा टेस्ट केस देख लेते हैं, उसके बाद मैं समझाता हूँ ये फाड़ू क्वेश्चन क्यों था। ठीक है, लेट्स से हमारे पास एक ग्रिड है, डॉट डॉट एंड हैश टैग डॉट। तो देखो इन लोगों ने बना रखा है। ठीक है, तो मान लो मैं यहाँ लास्ट रो से मुझे स्टार्ट करना है, मैंने यहाँ स्टार्ट किया, तो एक पॉसिबल आंसर, सिंपल सी बात है, वन से लेके लास्ट रो से लेके फर्स्ट रो पे, जीरो रो पे चला गया। दैट इज फर्स्ट वे, कि वन से टू पे चला गया। ठीक है, कि यहाँ से यहाँ कूद गया, यहाँ से कहीं नहीं कूद सकते, ये ब्लॉक्ड सेल है, राइट। यहाँ से यहाँ कूद गए। और एक और तरीका क्या है कि तुम यहाँ से यहाँ गए, और फिर तुम यहाँ से इस टू से यहाँ कूद गए। दैट इज ऑल्सो अ पाथ, दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबल रूट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया बेसिकली, कि तुम्हारे दो पॉसिबल रूट्स है, और कोई भी पॉसिबल रूट नहीं है। यहाँ पर तुम्हारा डी याद करो, वन दे रखा है, डी इज वन। इसका मतलब किन्हीं भी दो सेल, जो दो सेल तुम चूज कर रहे हो, उनके बीच में जो यूक्लिडियन डिस्टेंस है, ठीक है, यूक्लिडियन डिस्टेंस याद कर लेना अच्छे से कि क्या होता है, समझ लेना। आई डोंट थिंक आई हैव टू रिपीट इट अगेन। ठीक है, वो क्या होता है, एंड तुम्हें वो फॉलो, तो वो वन है। ठीक है, वन से ऊपर नहीं हो सकता। तो ऐसे सिर्फ दो ही पाथ पॉसिबल है, तो द आंसर इज टू। आज काफी रिस्ट्रिक्शन वाले क्वेश्चन आए थे, लेकिन ये बात तो मैंने देखी, आज हर एक क्वेश्चन में मैक्सिमम ऐसा था कि भाई रिस्ट्रिक्शन फॉलो करना है, ये फॉलो करना है, ये चार कंडीशन फुलफिल करनी है तभी जाके बनेगा। ठीक है, जो भी है। ओके, तो आई थिंक ये फुलफिल हो गया। उसके बाद अगर हैश टैग है, तो भाई सिंपल सी बात है, कोई पाथ पॉसिबल ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। और दो डॉट्स हैं, सिर्फ दो डॉट्स है, तो सिंपल सी बात है, डी इज वन। डी इज वन, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ चले जाओ। यहाँ से स्टार्ट किया, ये खुद में एक ऑप्शन हो गया। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करके फिर यहाँ चले गए, ये एक दूसरा ऑप्शन हो गया। उसके बाद इस वाले से स्टार्ट करके खुद पे रहो, ये तीसरा ऑप्शन हो गया। इस वाले से स्टार्ट करके इस पे चले जाओ, ये चौथा ऑप्शन हो गया। सो यू कैन सी इट बेसिकली डॉट वन, वन डॉट, वन टू, टू वन। ठीक है, now we come to the constraint. The size of the grid is basically 750 by 750 at max, and grid of ij is basically dot या फिर hashtag, and the value of d, the maximum distance, basically जो constraint distance दिया हुआ है वो 750 है, वो भी at max 750 तक जाता है। तो numbers are not very big but at the same are not very small, but at the same time not very big। ठीक है, ये मतलब ऐसा है कि छोटे हैं, 750 स्मॉल, बट इतने भी छोटे नहीं है कि भाई तुम क्यूबिक निकाल दो। साफ साफ देख के पता लग रहा है 750 बाय 750 इज क्वाइट इनफ। ठीक है, 750 बाय 750 करोगे तो कितना होगा, इट्स 25 का स्क्वायर इंटू नाइन। ठीक है, 25 का स्क्वायर 625 हुआ, 625 इंटू नाइन इंटू 100। अब नाइन को 10 मान लेते थोड़ी देर के लिए, तो 625 इंटू 1000, तो भाई 6.25 इंटू 10 की पावर 5, तो इट्स क्वाइट अ बिग नंबर। इसको तुम 6 इंटू 10 की पावर 5 देख सकते हो। ठीक है, तो काफी तो ठीक ठाक नंबर है, सिंपल सी बात है। क्यूबिक अगर ट्राई करोगे तो क्यूबिक चलेगा नहीं इसमें।
ठीक है, कुछ क्वालिटी में ही सोचना पड़ेगा। अब सिंपल सी बात है, क्वेश्चन को देख के लैंग्वेज पढ़ते ही सबको आइडिया लग गया होगा भाई, टोटल नंबर ऑफ पाथ्स है और आधे लोगों की यहीं पर हवा टाइट हुई होगी। जब भी नंबर ऑफ पाथ्स वाले क्वेश्चन आते हैं, इट इज डायरेक्ट, इट इज 100% कंफर्म कि क्वेश्चन डीपी का ही है, क्वेश्चन रिकर्जन और डीपी का ही है। अनटिल एंड अनलेस कुछ ना कुछ ऐसा कुछ तिगड़म लग रहा होगा, कुछ नंबर थ्योरी लग रही होगी, या फिर कुछ एक अंडरलाइंग ऑब्जर्वेशन होगा जिसमें डायरेक्टली ही डायरेक्ट कैलकुलेशन आंसर मिल रहा होगा। इन मोस्ट ऑफ द केसेस जब ग्रिड आता है या फिर कुछ ऐसा और प्रॉब्लम आता है, ठीक है, इट्स ऑलवेज डीपी, इट्स ऑलवेज डायनेमिक प्रोग्रामिंग दैट कम्स इन, एंड दिस इज अ केस ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग ऑन ग्रिड्स। जैसे एक लास्ट टाइम, आई थिंक लास्ट वीक हमने डीपी ऑन व्हाट, आई थिंक डीपी ऑन मास्क या फिर डीपी ऑन ग्राफ्स कवर किया था, डीपी ऑन ट्रीज कवर करी थी शायद पिछले किसी वीडियो में। ये क्वेश्चन है डीपी ऑन ग्रिड्स। ठीक है, ग्रिड डीपी जो होती है जनरली, ये वैसा क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसी को फुलफिल करना है। अब आओ, इसको मैंने कैसे किया, मैं बताता हूँ मैंने कैसे किया। ठीक है, अ, अब ऐसे समझो, मुझे पता है कि मुझे पता है कि आई हैव टू ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम बॉटम रो। ठीक है, और और ऐसे करके मुझे टॉप रो पे जाना है। ठीक है, मुझे टॉप रो पे जाना है। ओके, मैंने क्या सोचा, व्हाट आई थॉट, कि भाई मैं क्या करता हूँ ना, कि मैं हर एक रो के लिए आंसर कैलकुलेट करता हूँ स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम रो। सिंपल सी बात है। अब ऐसे समझो कि अगर मैं किसी भी सेल पे हूँ, अगर मान लो मेरे पास एक ग्रिड बना हुआ है, ठीक है, ग्रिड मैं ऐसे बना लेता हूँ, मान लो थोड़ी देर के लिए छोटा ही सा मान लो मैं इस सेल पे हूँ। ठीक है, तो इस सेल पे आने के लिए मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है। ठीक है, इस सेल पे आने के लिए मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है, व्हाट ऑप्शन डू आई हैव, ये इतना पतला कैसे हो गया। हम्म इस सेल पे आने के लिए मेरे पास पॉसिबल ऑप्शंस क्या हैं। या तो मैं बॉटम से आया, या तो मैं नीचे वाली रो से आया हूँगा। ठीक है, या तो मैं इस वाली रो से आया हूँगा, करेक्ट, इस वाली रो से आया हूँगा। ठीक है, और याद रखो, दो दो आप ऑपरेशन नहीं लगा सकते। ठीक है, ठीक है, दो आप का मतलब क्या, कहने का क्या मतलब है कि तुम अपनी या तो सेम रो में रहोगे, या तो एक ऑपरेशन में जस्ट ऊपर जाओगे। ये नहीं कि दो रो एक बार में कूद गए। ठीक है, अब समझो कि सिंपल सी बात है, मैं किसी भी सेल पे जाने के तरीके क्या हैं। या तो मैं उसके नेबर से जाऊंगा, या तो मैं उसके डाउन से जाऊंगा। डाउन का मतलब बेसिकली ये कंप्लीट रो है। ठीक है, तो या तो उसके मैं सेम रो में जो भी उसके नेबर्स हैं उनके थ्रू उस सेल पे जा सकता हूँ, या तो मैं उसके नीचे वाले जा सकता हूँ। सो बेसिकली फॉर एनी सेल आई कॉमा जे, द वेज, और यू कैन से द पाथ्स आर बेसिकली डिपेंड अपॉन व्हाट, पाथ्स फ्रॉम बिलो, पाथ्स फ्रॉम बिलो प्लस पाथ्स फ्रॉम नेबर्स। देखो मैं प्रॉब्लम को कैसे तोड़ रहा हूँ। किसी भी पॉइंट पे, किसी भी जो सेल है आई कॉमा जे, उसमें पहुंचने के जो पाथ्स होते हैं वो बेसिकली कहाँ से आ सकते हैं, या तो उसके जस्ट नीचे वाले से आएंगे, या तो उसकी सेम रो में लेफ्ट या राइट मूवमेंट से आएंगे। ठीक है, सो आई कैन से इन अ वे कि जो पाथ्स ऑफ आई जे है दैट इज बेसिकली इक्वल टू पाथ्स विच कंट्रीब्यूट फ्रॉम बिलो एंड विच कंट्रीब्यूट फ्रॉम द नेबरिंग सेल्स। ठीक है, इन्हीं दोनों का सम है। अब देखो, सबसे क्वेश्चन में कठिनाई प्रॉब्लम यही पड़ती है, क्योंकि हमें ये बोल रखा है प्रॉब्लम में कि वी कैन नॉट मूव लेफ्ट और राइट मल्टीपल टाइम्स। हम अगर लेफ्ट में चले गए या राइट में चले गए तो सिर्फ एक ही बार जा सकते हैं, उसके बाद हमें ऊपर जाना ही पड़ेगा। राइट, दैट इज वाई वी हैव टू यू नो कीप ऑन कैलकुलेटिंग दिस थिंग्स सेपरेटली। ये पाथ जो है फ्रॉम बिलो और फ्रॉम नेबर्स, इनको अलग अलग हमेशा कैलकुलेट करते रहना पड़ेगा, जो मैंने तरीका लगाया। ठीक है, तो दिस बेसिकली द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब ये बताओ, ये तो हो गया किसी भी एक जनरल आई कॉमा जे के लिए। जब हम बात करते हैं लास्ट रो के लिए, तो ये बताओ, लास्ट रो में जो ये वाला फैक्टर है, पाथ फ्रॉम बिलो वाला, ये होगा क्या? ये होगा? ये नहीं होगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, वो लास्ट रो है, लास्ट रो के नीचे कुछ होता ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हमारे लिए एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। ये हमारे हमारे लिए एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है कि हम यहाँ पर से स्टार्ट करें। यहाँ पर हमारे लिए ये है ही नहीं, ये तो बंदा है ही नहीं। ठीक है, बस इसको कैलकुलेट करना है कि पाथ फ्रॉम नेबर्स क्या होने चाहिए। ठीक है, अब मान लो, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट n-1 एंड सम पर्टिकुलर j। ठीक है, अब जब मैं सेम रो में बात कर रहा हूं और मेरा जो कंस्ट्रेंट है वो क्या है, वो है d का। ठीक है, कि यूक्लिडियन डिस्टेंस जो है वो d से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, एनी सेल इन दिस n-1 रो वुड बी ऑफ काइंड व्हाट, n-1 कॉमा j1 मान लो है। दूसरा क्या होगा, n-1 कॉमा j2 टाइप का होगा। तो सिंपल सी बात है, जब तुम ed लोगे, ed मतलब यूक्लिडियन डिस्टेंस, उसमें जो फाइनल डिस्टेंस डिपेंड करेगा वो बेसिकली J1 माइनस J2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट होगा। ठीक है, क्योंकि n-1 तो कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो हमें बेसिकली ये देखना है, वो सारे सेल्स जिनमें जिनका बेसिकली क्या, अगर ये J1 माइनस J2 जो है वो अगर लेस देन इक्वल टू डी रहा, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये स्क्वायर रूट भी जो होगा, ठीक है, वो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू डी रहेगा ना। ठीक है, अगर दिस इज व्हाट लेस देन इक्वल टू डी, ठीक है, देन दिस अंडर रूट
देन दिस अंडर रूट विल ऑल्सो बी लेस देन डी, राइट? तो इसका मतलब हम अगर सेम रो में है, जब भी हम सेम रो की बात करें, एंड आई विल फर्मली रिपीट दिस पॉइंट, क्योंकि ये आगे जब हम ऊपर वाली रोज के बारे में कैलकुलेट करेंगे, दिस रूल स्टेज द सेम। जब हम सेम रो में बात कर रहे हैं, वी नो द रो इज सेम बट जे कोऑर्डिनेट्स, बेसिकली द वाई कोऑर्डिनेट्स, और यू कैन से द कॉलम नंबर इज डिफरिंग। रो तो सेम है तो वो तो कैंसिल हो जाएगी। मान लिया पर n माइनस वन की जगह मैं कोई भी जनरल x रख देता, या कोई भी जनरल i1 या i1 रख देता, मान लो i रख देता, सिंपल सी बात है, अगर ये सेम रो में है तो i1 i1 कैंसिल हो गया। J1 माइनस J2 का जो डिफरेंस है वही डिसाइड करता है वो डिस्टेंस कितना होना चाहिए। सो अगर J1 माइनस J2 इज लेस देन इक्वल टू डी, तो सिंपल सी बात है, इन सेल्स के बीच में जो ईडी होगा वो भी लेस देन इक्वल टू डी होगा। तो इसका मतलब इफ यू आर स्टैंडिंग एट इंडेक्स n माइनस वन कॉमा J1, then your possible left neighbors and your possible right neighbors are what? Are n minus वन comma J1 minus D, ठीक है, एंड n minus वन comma J1 plus D। आपकी ये तो पॉसिबल, ये आपके जो रेंज है, दिस इज द रेंज ऑफ नेबर्स दैट यू कैन बेसिकली टेक। इस रेंज में, इस रेंज के अंदर अंदर जितने भी नेबर्स हैं, ठीक है, जो कि अवेलेबल सेल हैं, ठीक है, मैं वी आर अच्छा, एक और बात, व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग दिस वैल्यूज, वी आर ओनली कैलकुलेटिंग इट फॉर व्हाट? डॉट्स। हैश टैग्स के लिए सब कैलकुलेशन नहीं होगा, ठीक है, डॉट्स के लिए होगा, ठीक है, क्योंकि हैश टैग्स का कोई मतलब नहीं है, दे आर ब्लॉक सेल्स, तो ब्लॉक सेल्स के लिए क्यों कैलकुलेट करना है तुमको आंसर? ठीक है, वो किसी काम का नहीं, वैसे वो बेकार है, ठीक है। तो जब भी हम बात कर रहे हैं किसी डॉट वाले सेल का, तो इस रेंज में, इस पूरे रेंज में जितने भी डॉट्स होंगे, ठीक है, वो सब क्या कर सकते हैं, वो सब अपना लेफ्ट या राइट ऑपरेशन बेसिकली लगा के, जो कि हम कह रहे थे ना सेम रो में मूव करने वाला, वो ऑपरेशन एक बार लगा के यहां पर जंप कर सकते हैं किसी ना किसी तरीके से, राइट? तो जितने भी डॉट्स इस पूरे रेंज में, ऑल द डॉट्स इन दिस रेंज which basically can jump from their cell from their point to this point, will all of them contribute to number of paths, ठीक है, क्योंकि एक मूव तो हम लेफ्ट और राइट वाला कर ही सकते हैं। तो इस वाले पॉइंट पे मूव करने का कितना तरीका है? इट इज बेसिकली व्हाट यू कैन से, इसको लेफ्ट बना लेते हैं, इसका लेफ्ट ऑफ J1 कह लेते हैं, इसको कह लेते हैं राइट ऑफ J1, ठीक है। अब ये सोचो, अगर मैं हर बार लूप चलाऊं, अगर मैं हर बार क्या करूंगा, बेसिकली हर एक इंडेक्स के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कि मैंने कोई J1 इंडेक्स उठाया, कोई भी J इंडेक्स उठाया, उसके बाद उसके राइट और लेफ्ट में डी डी जाके देखा मैंने लगातार, कि भाई कितने डॉट्स हैं कितने नहीं है। तो उससे क्या होगा, मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑलरेडी, हर रो को चेक ही कर रहे हो। अब हर रो में हर एक एलिमेंट के लिए हर बार तुम 2D एलिमेंट्स को कवर कर रहे हो, और ये डी भाई कितना भी हो सकता है, राइट? सो ऑलरेडी क्यूबिक जा रहा है। तो ये जो फाइंडिंग ऑफ दिस है ना, द फाइंडिंग ऑफ कि कितने डॉट्स हैं इस रेंज में, उसको तुम कैसे कर सकते हो, उसको तुम एफिशिएंटली कैसे कर सकते हो? हम क्या करेंगे, डॉट्स को बना लो वन, हैशटैग को बना लो जीरो। अब ये बताओ, अगर मैं जीरो और वन की फॉर्म में इसको एनकोड कर लूं, अगर मैं इसको जीरो और वन की फॉर्म में एनकोड कर लूं, तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं बस डायरेक्टली जो इसकी वो है राइट वाली एंडिंग ये है, लेफ्ट वाली एंडिंग ये है, पी ऑफ आर माइनस पी ऑफ एल करके निकाल लूं? इफ यू हैव ऑलरेडी, इफ अगर आप फिगर आउट कर ले गए हो, इट इज प्रीफिक्स, सिंपल परफेक्शन, कुछ नहीं करना है। लगातार क्या करो, जिस भी रो पे आए हो, मान लो जिस भी रो के लिए कैलकुलेट कर रहे हो, एंड दिस इज कॉमन फॉर ऑल रोज, तुमने कोई रो उठाई है, उसके लेफ्ट और राइट नेबर्स तुम्हें कैलकुलेट करने हैं। तो क्या करो कि ये डॉट और डैश वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है, जीरो और वन के फॉर्म में रखो, ठीक है, प्रीफिक्स हम निकाल लो। नाउ इफ फॉर एनी इंडेक्स आई व्हाट यू विल डू, मतलब आई जे, ठीक है, मान लो तुम आई जे पे हो, आई कॉमा जे पे हो, सो व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग फॉर द लेफ्ट एंड राइट पार्ट और लेफ्ट एंड राइट नेबर्स, सो व्हाट यू विल डू बेसिकली, यू विल प्रेफिक्स है जो भी तुमने बनाया है, ठीक है, इसका मान लो राइट राइट पार्ट आर आता है और ये एल आता है, ठीक है। सो विल जस्ट सब्ट्रैक्ट पी ऑफ आर माइनस पी ऑफ एल माइनस वन, ठीक है, और इससे आपको डायरेक्टली क्या पता लग जाएगा, कितने डॉट्स हैं इस आर पे कॉन्ट्रीब्यूटिंग, इस आर में कितने डॉट्स हैं, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा क्या कहते हैं, डॉट्स निकालने का। अच्छा, अब एक चीज हमें यहाँ पर एक बहुत याद रखो, एक क्वेश्चन क्योंकि बड़ा फाइन ग्रेन्ड है इसलिए ये प्रॉब्लम है, ठीक है। यहाँ पर हमने एक चीज को इंक्लूड हमें नहीं करना चाहिए था, हमने वो इंक्लूड किया है। वो क्या है, वो क्या है, देखो, हम जब निकालेंगे ना अपने सारे पाथवेज, तो हम लगातार, मैंने क्या कहा था, हम रो वाइज निकालते जाएंगे। पहले क्या करेंगे, लास्ट रो के लिए निकालेंगे, फिर लास्ट रो का यूज करके हम सेकंड लास्ट रो के लिए निकालेंगे, फिर सेकंड लास्ट रो का आंसर यूज करके हम थर्ड लास्ट के लिए निकालेंगे। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट आई विल फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन द लास्ट रो, देन यूजिंग द नंबर ऑफ वेज इन द लास्ट रो, आई विल कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ पाथ्स टिल द सेकंड लास्ट रो, ठीक है। सेकंड लास्ट रो तक का मुझे आंसर आ चुका है, तो मुझे उसके नीचे वाली जो n माइनस वन या लास्ट रो थी उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ फॉर एन थर्ड लास्ट रो, आई विल यूज द आंसर ऑफ द सेकंड लास्ट रो। तो मुझे क्या होगा, अब सिर्फ सेकंड लास्ट रो का यूज करके आई विल बी एबल टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ पाथ्स और रूट्स टिल द थर्ड लास्ट रो।
ऐसे करते करते ऊपर जाऊंगा तो मुझे हर बार कितनी, सिर्फ 2 रोज की जरूरत है, ये वाली और इसके जस्ट नीचे वाली। उसमें जो भी आंसर होगा वो बेसिकली क्या होगा, दैट विल बी नंबर ऑफ पाथ्स अप टिल दिस रो। ऐसा समझो कि आई एम, लेट से आई एम एट दिस रो जो कि नीचे वाली है, दिस बेसिकली कंटेन्स द नंबर ऑफ पाथ्स अप टिल दिस रो। ठीक है, अप टिल दिस रो आई हैव द नंबर ऑफ पाथ्स। अब मुझे क्या करना है, बस ये वाली जो रो का आंसर है उसको ऐड करना है, ये जो एक अकेली रो है इसके साथ, इसको आपस में जब ऐड करेंगे तो अपने आप जो ऊपर वाली रो है, जस्ट ऊपर वाली ये वाली, ठीक है, उसके लिए हमें मिल जाएगा कि नंबर ऑफ पाथ्स। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज बेसिकली number of paths for row I is just equal to what, left right neighbors in I, in row I, plus number of paths till row I plus 1। ये है बेसिकली जो मैं रिकर्सिव फॉर्मूला या फिर कुछ भी कह लो, ये फॉर्मूला जो मेरा ब्रेकडाउन का है मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, किसी भी ith रो के लिए जो आंसर निकालना होता है उसमें क्या करना है, जो पिछले वाली रो है यानी कि इसकी जस्ट नीचे वाली रो, उस तक के नंबर ऑफ पाथ्स प्लस जो इस वाली रो में जो लेफ्ट और राइट नेबर्स हैं उनके वजह से जो पाथ्स आएंगे उन्हें ऐड करते जाना है। एंड फाइनली एट द एंड आप टॉप रो पे आओगे, टॉप रो पे आपको फाइनली ऑल द पाथ्स मिल चुके होंगे। ठीक है, फाइनली जब आप टॉप रो पे आओगे, जब टॉप रो पे आओगे तो क्या होगा, हर एक सेल, मान लो ये जीरोथ रो है, ठीक है, तो हर एक सेल क्या होगा, 0 1 2 ऐसे मान लो, ऐसे करते करते सारे होंगे। ठीक है, तो एवरी इंडेक्स इंडिविजुअली विल बी टेलिंग यू दैट हाउ मेनी पाथ्स आर देयर फ्रॉम द बॉटम रो अप टिल दिस सेल। ठीक है, ऐसे जीरो सेल के लिए आ गया। इन अ सिमिलर वे दिस वैल्यू विल बी इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ पाथ्स फ्रॉम द लास्ट रो अप टिल द फर्स्ट सेल इन द जीरोथ रो, इन द टॉप रो। ठीक है, सिमिलरली दिस वैल्यू विल बी टेलिंग यू द नंबर ऑफ पाथ्स फ्रॉम द बॉटम रो, लास्ट रो, अप टिल द सेकंड सेल इन द जीरोथ रो। ठीक है, और हमें क्या बताना है, टोटल नंबर ऑफ पाथ्स बताना है। तो जब हमारे पास सारे आंसर आ चुके होंगे तो हम कुछ नहीं करेंगे, बस जो टॉप रो है उसकी सारी वैल्यूज को ऐड ऑन कर देंगे, सबको आपस में सम कर देंगे, हमें अपना आंसर मिल जाएगा। अब मैं इसकी इंप्लीमेंटेशन पे जाऊंगा, वहीं पर आपको डायरेक्टली चीजें और समझाऊंगा इन डिटेल में। ठीक है, और क्योंकि बताऊंगा तो फालतू फालतू का टाइम वेस्ट है, तो वहीं चल के बताते हैं, दैट विल मेक थिंग्स मोर क्लियर। ठीक है, ये गए। ठीक है, सबसे पहले क्या किया, अपना मॉड डिफाइन कर लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहले देखो मैंने डीपीआरए बना लिया, जैसे कि मैंने बताया कि मैंने जो टेक्निक बताई, मैंने जो टेक्निक लगाई थी इसमें, फॉर दैट आई वाज जस्ट यूजिंग कि करंट रो जो है वो तो मतलब उस टाइम पे प्रोसेस कर रहे हैं, और मुझे उसकी जस्ट नीचे वाली रो चाहिए, मुझे और उस नीचे वाली की जो और भी नीचे रोज हैं मुझे उनकी जरूरत नहीं है। हर बार तुम्हें हर एक पाथ को निकालने की जरूरत नहीं है, नाइव अप्रोच तो बेसिकली यही कहता है कि हर एक पाथ निकालो, पर वो चलेगा नहीं यहाँ पर। हमें अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को क्वाड्रेटिक में रखना है, एन इंटू एम रखना है, एन इंटू एम के ऊपर नहीं जा सकते। ना एन इंटू एम स्क्वायर कर सकते हो, ना एन स्क्वायर एम कर सकते हो, और लॉग वाला कोई अप्रोच तो मुझे नहीं लगता कि कोई निकाल सकता है इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली। ठीक है, इस क्वेश्चन में तो लॉगरिथमिक अप्रोच कहीं पर है ही नहीं कि भाई तुम एन इंटू लॉग एम कर दो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये डीपीआरए बना लिया एम साइज का। एम इज बेसिकली व्हाट, द साइज ऑफ योर एवरी रो। हर एक रो जो है तुम्हारे पास एन रोज है टोटल, और हर एक रो का साइज, एवरी रो इज इटसेल्फ अ वेक्टर, और यू कैन से एन एरे ऑफ साइज एम। दैट इज वाई एम साइज का एक डीपीआरए लिया है। अब क्या किया, अब हम लास्ट रो, देखो सबसे पहले लास्ट रो को उठा रहे हैं, उसमें देख रहे हैं जहां जहां पर डॉट है, ठीक है, वहां पर वन कर दे रहे हैं, बाय डिफॉल्ट जीरो था, तो सिंपल सी बात है, डॉट 0 1 इनकोडिंग हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, देन वी कैलकुलेट आवर प्रीफिक्स सम फॉर द लास्ट, ओके, फॉर द लास्ट बेसिकली रो। ठीक है, यहाँ पर डीपी ऑफ जे में भी जो है वो बेसिकली लास्ट रो की वैल्यूज है, राइट। और याद रखो, ओरिजिनली जो लास्ट रो होती है उसमें सिर्फ क्या होती है, उसमें सिर्फ लेफ्ट और राइट नेबर्स का कैलकुलेशन होता है, करेक्ट। उसमें बॉटम फ्रॉम बिलो वाला ऑप्शन नहीं होता है, राइट। दैट इज वाई यहाँ पर आप अभी जो इनिशियलाइजेशन, बेसिक इनिशियलाइजेशन देखोगे ना इस डीपी का, उसमें सिर्फ फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट नेबर्स होगा, राइट। तो प्रीफिक्स हम निकाल लिया जैसे कि मैंने कहा। नाउ व्हाट विल डू, नाउ यू नो वी डिक्लेयर अनदर डीपीपी एरे। ठीक है, ये भी एक डीपी एरे ही है, एक तरीके से इसको डीपीपी बोल दिया। ठीक है, नाउ व्हेनेवर वी हैव हैशटैग, सिंपल सी बात है, छोड़ दो जीरो करके इसको आगे बढ़ दो, इसका इसमें कोई नंबर ऑफ पाथ्स नहीं है। डीपीपी जो है हमारा है, डीपीपी एरे हमारा एक ट्रांजिशन वेरिएबल है, जो हमें बीच, जो एक इट्स बेसिकली अ वेरिएबल व्हिच इज बीन डिफाइंड इन बिटवीन, जो कि हमें करंट स्टेट से अगले स्टेट पे ले जाएगा। ठीक है, इट्स अ ट्रांजिशन वेरिएबल जो हमें बीच में ट्रांजिशन करने में हेल्प करेगा। ठीक है, डीपी से डीपीपी। ठीक है, अब डीपीपी तुम बनाओगे, डीपी में कैसे करोगे, तो ये तुम बेसिकली पहले सेम रो के लिए देख रहे हो, रिमेंबर वी आर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ओनली कवरिंग द लास्ट रो। ठीक है, तो उसमें सिर्फ सेम नेबर के अंदर अंदर होता है। ठीक है, तो जीरो से जे माइनस डी, सिंपल सी बात है, जो भी मैक्सिमम होगा तुम एरे के बाहर नहीं जा सकते, उसका राइट निकाल लिया तुमने। उसके बाद इसका क्या कहते हैं, लेफ्ट और राइट जो भी तुम्हारा था, यू गॉट द डिफरेंस कि कितने डॉट्स एग्जिस्ट करते हैं इस रेंज में। एंड यू ऑल्सो सब्ट्रैक्टेड डीपी ऑफ जे। ये डीपी ऑफ जे सब्ट्रैक्ट क्यों किया है, ये किसी ने ध्यान दिया, ये इसलिए ध्यान दिया है
क्योंकि ऐसा समझो, मान लो तुम किसी सेल आई कॉमा जे पे हो, क्या तुम आई कॉमा जे से आई कॉमा जे पे जा सकते हो? इस बात का कोई सेंस बनता है? इस बात का कोई सेंस नहीं बनता है। बट द पॉइंट इज, जब तुम प्रीफिक्स सम निकाल रहे हो ना उस सबैरे का या फिर उस रेंज का, तो वो जो डॉट है जहां पर वो खुद है खड़ा, वो भी काउंट हो रहा है नंबर ऑफ पार्ट्स में, जो कि काउंट नहीं होना चाहिए था। करेक्ट? हम बेसिकली क्या कह रहे थे कि फ्रॉम ऑल द नेबर्स, व्हाट दिस डीपी ऑफ जे बेसिकली मींस, यहाँ पर जब हम व्हेन वी वर कैलकुलेटिंग, व्हाट वी वर कैलकुलेटिंग कि कितने नेबर्स से हम इस सेल पे आ सकते हैं। ठीक है, दैट इज व्हाट वी आर कैलकुलेटिंग। ठीक है, दैट इज व्हाट वी आर कैलकुलेटिंग। तो ये बताओ, कोई सेल जो है वो खुद का नेबर हो सकता है क्या? वो नहीं हो सकता है, राइट? वो खुद का नेबर नहीं हो सकता है। दैट इज वाई वी आर सब्ट्रैक्टिंग डीपी ऑफ जे यहाँ पर। ठीक है, ठीक है। एंड नाउ बेसिकली हम उसके लिए नंबर ऑफ पास कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हर एक का समय से आता जाएगा। ठीक है, डीपी ऑफ जे वुड बी बेसिकली इक्वल टू व्हाट, डीपीपी ऑफ जे वुड बी डीपीपी ऑफ जे प्लस एसएस। ऐसे मुझे जो लास्ट रो है उसके सारे नंबर ऑफ पार्ट्स मिल जाएंगे। तो ये मेरा बेसिक नोटेशन हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना मेन काम, जो सेकंड लास्ट रो है वहां से। सेकंड लास्ट रो के लिए हमने दो एरे बना लिए। देखो, ये दो डीपी एरे फिर से हैं। नेक्स्ट डीपी पढ़ के अपने आप पता लग जाएगा। अच्छा, और एक और, नेक्स्ट स्टेट पे जाने से पहले हमने डीपी एरे को डीपीपी के इक्वल कर दिया था। मैंने क्या कहा था? डीपीपी इज अ व्हाट, इट्स अ ट्रांजिशन वेरिएबल, जो कि आपको हेल्प कर रहा है आपके डीपी वाले वेक्टर को एक रो से दूसरी नेक्स्ट रो ऊपर वाली रो पे मूव करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे कर रहा है। अब हमने बनाया यहाँ पर दो एरे के नेक्स्ट डीपी है नेक्स्ट स्टेट निकालने के लिए। अब जो नेक्स्ट हम करेंगे उसमें डीपी, जो डीपीपी है उसकी जगह पर हम ये नेक्स्ट डीपी यूज करेंगे। एट द सेम टाइम, जो मैंने बताया था कि जो नीचे वाली रो है उसका कंट्रीब्यूशन कैसे देखना है, उसके लिए एफ बी बनाया है, फ्रॉम बिलो। इट्स अ शॉर्ट फॉर्म फॉर फ्रॉम बिलो, एफ बी। ठीक है, अब निकालेंगे डिस्टेंस। ठीक है, अब ये जो यहाँ पर मैंने लिखा है, दैट बेसिकली डिनोट्स अपवर्ड मूवमेंट। लेफ्ट और राइट मूवमेंट तो आपने देख लिया, उसको तो आपको पता है कि भाई लेफ्ट और राइट में जा रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट जब अप मूव कर रहे हो, ऊपर मूव कर रहे हो, तो क्या होगा? अप मूव करने में बेसिकली ऐसे समझो कि आपका क्या, कॉलम कॉलम चेंज, कॉलम जो होगा वो बेसिकली चेंज हो सकता है। ठीक है, कॉलम जो भी हो वो चेंज हो सकता है, पर आपका जो अपवर्ड डिस्टेंस है, ठीक है, अब ऐसे समझो, अगर आप आई कॉमा जे पे हो, तो आप मान लो आई कॉमा जे वन पे हो, तो आप आई माइनस वन कॉमा जे टू पे जाओगे। ठीक है, मान लो आप आई कॉमा जे वन पे थे, और आप किसी आई माइनस वन कॉमा जे टू पे चले गए, तो क्या हुआ? आपका जो आई और आई माइनस वन है, तो इसमें एक यूनिट का डिस्टेंस आ गया। बाकी जे वन और जे टू मुझे नहीं पता है। ठीक है, जे वन जे टू मुझे नहीं पता है। तो इसका मतलब ऐसे समझो, when you are moving upward when you are moving upward from I comma you know J1 टू I माइनस वन कॉमा J2, तो इसके बीच का ईडी कितना है? इसके बीच का ईडी कितना है? सिंपल सी बात है, इट विल बी आई माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस J1 माइनस J2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, इसको अगर तुम आप खोल के देख लो, इसको खोलोगे, सिंपल सी बात है, डिफरेंस वन है, सो दिस विल बिकम व्हाट, वन प्लस J1 माइनस J2 का होल स्क्वायर। और ये एट मैक्स कितना हो सकता है? डी के बराबर। सो डी स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट, वन प्लस J1 माइनस J2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, योर J1 माइनस J2 का होल स्क्वायर शुड बी व्हाट, शुड बी लेस देन इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, इसका मतलब J1 माइनस J2 शुड बी लेस देन इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस वन। इसका मतलब व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम अ कॉलम J1 एंड यू आर मूविंग गोइंग टू अ कॉलम J2, ठीक है, द मैक्सिमम डिफरेंस, ठीक है, द मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन देम शुड बी लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस वन, शुड बी लेस देन इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस वन। और यही हमने यहाँ पर लिख रखा है। क्या लिख रखा है? ये डी स्क्वायर निकाला, अगर डी टू बिगर देन वन है, ठीक है, तो अपने आप देखा कि भाई क्या, वी कैलकुलेट द डी स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर रूट। ये हमारा मैक्सिमम डिस्टेंस बन गया। ठीक है, अब आते हैं हम अपने वैल्यूज को निकालने के लिए। अब देखो, यहाँ पर एक और ऑप्टिमाइजेशन किया गया है। एक और ऑप्टिमाइजेशन क्या किया गया है कि अब जब हम अपने रो में हैं, अपनी रो में अपना आंसर निकालना, अपनी रो में अपना आंसर निकालने के लिए प्रीफिक्स हम यूज किया है, वेरी गुड। ठीक है, क्योंकि हमें नेबर्स का निकालना था कि कितने नेबर्स इस सेल पे आ सकते हैं। जब हम फ्रॉम बिलो निकाल रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, जो हमारा जस्ट बिलो वाला सेल है, उससे थोड़ी निकाल रहे हैं। हम तो भाई कहीं से भी आ सकते हैं ना। मैंने क्या कहा, मैं इस रो, मान लो मैं यहाँ पर था, यहाँ से मैं यहाँ चला गया। ठीक है, तो ये मूवमेंट जो है वो भाई एब्रप्ट है, ये कोई वेल डिफाइंड नहीं है। मुझे नहीं पता कि भाई मैं कितना यूनिट चला हूँ, राइट? ऐसा तो है नहीं कि जस्ट इससे जस्ट ऊपर वाले सेल पे चले गए, नहीं, ऐसा नहीं है। आप कहीं से कहीं भी जा रहे हो। ठीक है, इसलिए जो फ्रॉम बिलो वाला है, फ्रॉम बिलो में से हमको कितना लेना चाहिए, ठीक है, कि कितना रेंज हमको फ्रॉम बिलो से कवर करना है, उसका हम रेंज निकाल चुके हैं। ठीक है, पर पॉइंट ये है कि इसको भी जो समअप करना है ना, वेन यू आर ट्राइंग टू कैलकुलेट और ट्राइंग टू फाइंड द आंसर दैट फॉर करंट गिवन आई कॉमा जे, मुझे जो इसके जस्ट नीचे वाली रो है, जो बिलो वाली रो है, उसमें से कितने ऐसे सेल हैं जहां से इस सेल पे आ सकते हो। ठीक है, अब समझो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। ठीक है, अभी तक हम ये निकाल चुके थे कि मान लो ये सेल है,
ठीक है। इस पे इसके लेफ्ट और राइट वाले कैसे आ सकते हैं, उसके लिए तुमने देख लिया कि प्रेफिक्स हम इस्तेमाल कर रहे थे फॉर फास्टर फाइंडिंग, ठीक है। बट व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग अबाउट द लोअर रो, जो इसके जस्ट नीचे आती है, ठीक है, तो भाई सिंपल सी बात है, तुम इस वाले इंडेक्स सेल पे इससे भी जा सकते होगे, इससे भी जा सकते होगे, इससे भी, एक रेंज ऑफ वैल्यूज होगी जिससे तुम इस सेल पे नीचे से जा सकते हो, राइट। तो भाई अब ये बताओ, इस सेल के लिए जब ये समेशन करोगे तो क्या वो भी बार बार करोगे क्या? उसमें भी क्या हो जाएगा, उसमें तुम्हारा एम स्क्वायर टाइम नहीं चला जाएगा अगेन। तो इसको भी फास्ट करने के लिए, ताकि तुम्हें ये सम जो है, तुम्हें क्वालिटी याद रखो, तुम्हें अपना टाइम क्वालिटी रखना है। फॉर दिस पर्पस हम ये जो पिछले नंबर ऑफ पाथ्स निकाले थे, बेसिकली दिस रो डिनोट्स व्हाट, दिस रो डिनोट्स नंबर ऑफ पाथ्स फॉर ईच सेल इन बिलो रो, ठीक है। अब यहाँ से जितने पाथ्स होते होंगे, वो यहाँ पर जाके एक और एक्स्ट्रा पाथ बनाएंगे, यहाँ से निकल के यहाँ एक पाथ और ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ मान लो दो थे, यहाँ पे तीन थे, तो यहाँ पर से दो पाथ जा रहे हैं तो ये एक पाथ बनाएंगे, ये तीन, यहाँ के चार मान लो, यहाँ पर दो, एक, ऐसे ऐसे करके तो ये सारे ऐड ऑन होंगे। इन सबको ऐड ऑन करने के लिए, इन सबका रेंज निकालने के लिए, इन सबको डायरेक्टली ऐड करने के लिए एक बार में और लूप ना चलाना पड़ा, इसके लिए हम एक और प्रेफिक्सम रख सकते हैं। सो बेसिकली वी आर मेंटेनिंग टू प्रेफिक्सम। वन प्रेफिक्सम इज बेसिकली फॉर द करंट रो हम जिसमें है, उसमें हम प्रेफिक्सम नेबर्स का कंट्रीब्यूशन फाइंड करने के लिए कर रहे हैं, एंड वन प्रेफिक्सम इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द लोअर रो, ठीक है। उसको तुम प्रेफ टू मान लो, ठीक है। इस केस में भी दिखा देता हूं मैं, यप आई होप दिख रहा है, हाँ। तो अब देखो, ये हमने ये लोअर जो पिछला वाला रो था, याद रखो डीपी में क्या था, डीपी में अभी तक पिछले वाले रो का कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो उसको हमने अपने प्रेफिक्स में स्टोर करा लिया। अब देखो क्या करेंगे, ग्रेड ऑफ आई अगर हैश है तो कंटिन्यू कर दो, कोई मतलब नहीं, बेकार है। अब देखो हमने क्या किया है, दिस इज बेसिकली फॉर वर्टिकल मूवमेंट। ये जो स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पर लिखी हुई हैं, दिस इज बेसिकली फॉर डिनोटिंग द वर्टिकल मूवमेंट्स। आप आई को मजे से कहा जा सकते हो, जे माइनस मैक्स डिस्टेंस से जे प्लस मैक्स डिस्टेंस। हमने याद रखो जस्ट ऊपर वाला, तुमको पता ही कि जस्ट ऊपर वाली रो पे जा रहे हैं, राइट। वो तो हमने ऑलरेडी वन वन डी टू माइनस वन करके निकाल ही लिया है। तो हमें सिर्फ जे वाले पार्ट पे फोकस करना है, बाकी किसी पे फोकस नहीं करना है, राइट। तो अगर हम जे पे थे तो कहाँ पे चले जाएंगे, जे प्लस मैक्स डिस्टेंस, जे माइनस मैक्स डिस्टेंस, और मैक्स डिस्टेंस तो ऊपर आप देख ही चुके हो क्या है, वो ये है, ठीक है। एंड फिर हम क्या करेंगे, फिर अगेन हम अपने प्रीवियस एरे जो हमने बनाया था, उसको अब क्या कह रहे हैं, उससे बेसिकली निकालेंगे कि नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज कमिंग फ्रॉम द प्रीवियस रो टू दिस रो फॉर दिस सेल, ठीक है। ये जो वैल्यू है वो क्या डिनोट करती है, वैल्यू डिनोट्स हाउ मेनी पाथ्स आर पॉसिबल फ्रॉम द जस्ट बिलो रो टू दिस सेल। ये ध्यान देना, हाउ वैल्यू यहाँ पर जो वेरिएबल डिफाइंड है, दैट डिनोट्स हाउ मेनी पाथ्स आर पॉसिबल फ्रॉम द लोअर रो टू दिस रो फॉर दिस गिवन सेल, ठीक है। एंड दैट इज वाई ये जब वैल्यू तुमने निकाल ली, यू डिनोट एफ बी ऑफ जे इक्वल टू वैल। एफ बी ऑफ जे मतलब फ्रॉम बिलो जे। हम ith रो में हैं, तो इसमें तो jth सेल है, इस पे फ्रॉम बिलो यानी कि i प्लस वन वाली रो से कितने लोग कितने पाथ बन रहे हैं, दैट इज एफ बी जे ऑफ एफ बी ऑफ जे फ्रॉम बिलो ऑफ जे, ठीक है। ये पता लग गया हमें अपनी करंट रो के लिए। हमारे पास क्या आ चुका है, हमारे पास कि नीचे से फ्रॉम बिलो आ चुका है। अब हमें नेक्स्ट कैलकुलेट क्या करना है, कि नेबर से क्या करना है। नेबर के लिए तो फिर से वही सेम लॉजिक जो हमने पहले ऊपर लिखा हुआ था, कुछ नहीं करोगे, जैसे हमने प्रेफिक्सम बनाया था वहां पर प्रेफ ले लिया था, यहाँ पर तुमने करंट बना लिया थोड़ी देर के लिए, ठीक है। करंट से तुमने एफ बी ऑफ के निकाल लिया, इसका कोई इतना कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये डायरेक्टली आंसर कैलकुलेट करने के लिए इजी पड़ेगा इसलिए। तो तुमने एफ बी ऑफ जे निकाला, ठीक है, फ्रॉम बिलो जे निकाल लिया, ओके, ठीक है। और उसके बाद क्या कहते हैं, लेफ्ट और राइट का कंट्रीब्यूशन देखा, लेफ्ट और राइट से कितने कंट्रीब्यूशन बनने हैं याद रखो। बेसिकली क्या, हमें तो नंबर ऑफ पाथ्स फाइंड करने थे ना। अब भाई खुद ऐसे समझो, ऐसे समझो कि जब तुम इस सेल पे आ रहे हो, और यहाँ पर एक और दो दो सेल बना लेते हैं, और यहाँ पर एक रो है, ठीक है, यहाँ पर एक रो है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बेसिकली कैसे निकालोगे, सबसे पहले हर एक सेल का तुमने फाइंड कर लिया, मान लो इस पे ये तीन जाते हैं, इस पे ये सिर्फ दो जाते हैं, ठीक है। और ये जो दोनों हैं, ये दोनों जो हैं, ये इस पे जा सकते हैं, ठीक है। तो इस वाले सेल के लिए आंसर क्या होगा, इस वाले सेल के लिए इसके जो टोटल पाथ्स आ रहे हैं इस वाले सेल से, इस वाले सेल के थ्रू इस पे जो पाथ आ रहे हैं वो सारे, और इसके खुद के अकेले से जो आ रहे हैं वो भी, ठीक है। तो इन सबका सम हमें लेना है बेसिकली, दैट इज वाई हमने एफ बी जे पे भी एक और प्रेफिक्स लगाया है, ठीक है। एंड वी फाइंड द नंबर ऑफ वेज, एफ बी ऑफ जे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा था कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड, वी आर ट्राइंग टू फाइंड कि जब हम अपने नेबर से इस सेल पे कूदते हैं तो कितने नंबर ऑफ वेज बनते हैं, राइट। तो तुम खुद से खुद पे नहीं कूद सकते, दैट इज वाई वी आर सब्ट्रैक्टिंग एफ बी ऑफ जे, ठीक है। एंड नेक्स्ट डीपी ऑफ जे क्या होगा, द नंबर ऑफ वेज जो कि ओरिजिनली उसके खुद के अकेले के थे कमिंग फ्रॉम बिलो, एंड द नंबर ऑफ वेज विच कम फ्रॉम इट्स नेबर्स, ठीक है। इन दोनों का सम होगा। एंड आफ्टर वी आर डन विद दिस, हम देखो क्या करें, डीपी को नेक्स्ट डीपी, जैसे कि मैंने कहा था, जैसे हमारा
पहले डीपीपी एरे था, वही हमारा यहाँ पर नेक्स्ट डीपी वाला ट्रांजिशन वेरिएबल वाला एरे है। एंड इन दिस वे विल कीप ऑन अपडेटिंग एंड फाइनली विल मूव टू द जीरो थ्रो। जब जीरो थ्रो पे पहुंच गए तो कुछ नहीं किया, हर एक वैल्यू उठाई अपने डीपी एरे से, उसका सम किया, एंड दैट विल बी फाइनल आंसर। The time complexity because of the optimization of prefix sums regularly is order n into m. स्पेस भी, स्पेस तुम्हारी क्या है, स्पेस ऑर्डर m है, याद रखो। स्पेस ऑर्डर m है, स्पेस ऑर्डर m तो मतलब यू कैन से इट्स ऑर्डर m, बट आई वोंट से इट्स ऑर्डर m एक्चुअली। अगर यही वेरिएबल्स को तुम अगर बाहर ले लेते तो कोई दिक्कत नहीं थी, बट ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेनली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो यहाँ पर ऑप्टिमाइज हुई है, दैट इज ऑर्डर n इंटू m। ऑर्डर n इंटू m, क्वाड्रेटिक में हम रहे हैं, क्वाड्रेटिक से ऊपर बिल्कुल भी नहीं बढ़े। एंड दैट इज वाई दिस क्वेश्चन वॉज वेरी हार्ड। इस क्वेश्चन में ये पता लगाना कि भाई कितने ऑप्टिमाइजेशन है प्रीफिक्सम्स के लॉजिक, ये वाला लॉजिक जो है, पहली बात तो यही तुम्हें हिट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, ये हिट कर भी गया। उसके बाद इस लॉजिक को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, सच दैट वी हैव टू ऑप्टिमाइज एवरीथिंग, ठीक है। सिंपल लॉजिक में भी, इम्प्लीमेंटेशन एरर्स दे सकता है, इम्प्लीमेंटेशन में तुम गलत कर दोगे तो इट विल टेक टाइम, तो वहां पर टीएलई मार देगा तुरंत, ठीक है। सो दैट इज वाई दिस क्वेश्चन वाज स्पेसिफिकली हार्ड, ये क्वेश्चन हार्ड था वाकई में। And yeah, in this way, we have completed all the four questions. So I hope you understood how these questions were. Okay, understood. I hope you understood the explanations. I hope you understood the solutions that I've given and how I've explained them. उनके approach, उनके time complexity. If you like the solution, if you understood the solution, do like, share and comment. Like करो, वो like बटन जो है उस पे कॉपी फेंक के मारो, पेन फेंक के मारो, लैपटॉप फेंक नहीं, लैपटॉप मत फेंकना, टूट जाएगा। कुछ और कुछ भी मारो, पर सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। लाइक बटन पे लाइक बटन दबा दो, दब जाना चाहिए। फॉर ईच न्यू सब्सक्राइबर्स प्लीज डू सब्सक्राइब, ठीक है। आप लोग देख रहे हो, आई फील वेरी गुड, योर व्यूज आर कमिंग इन, आई फील वेरी गुड कि अ लॉट ऑफ पीपल आर वाचिंग दिस कंटेंट, इट्स रीचिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल। बट एट द सेम टाइम इफ यू वोंट सब्सक्राइब, तो बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि आपको दोबारा ये चीज देखने को मिले। दैट इज वाई डू क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम माय साइड। एंड या जो लेवल है ना कन्वर्जन ऑफ पीपल हु आर वाचिंग टू सब्सक्रिप्शंस, प्लीज इंक्रीज देम, आपका कुछ नहीं जाना है उसमें। एंड कमेंट करो यार। आई हैव ऑलरेडी ऑलवेज सेड कि पिछले वीडियोस में भी कि भाई इनमें बहुत मेहनत जाती है, प्रॉब्लम्स करने पड़ते हैं, एक अच्छा सोल्यूशन एक्सप्लेनेशन बनाना पड़ता है टू एक्सप्लेन इट टू यू, कि आपको समझ में आए। दैट टेक्स टाइम, दैट टेक्स एनर्जी, दैट टेक्स एफर्ट। सो जस्ट एज एन अप्रिसिएशन ऑफ दैट एफर्ट, डू कमेंट, बताओ कि तुम्हें क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, क्या तुम और देखना चाहते हो, क्या नहीं देखना चाहते हो, व्हाट कुड हैव बीन बेटर, गिव कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, ठीक है, वो दो। एंड यप, you can follow me on LinkedIn. That link will be in the description. You can also join our Insta page, the official Insta page, जहाँ पर मैं पजल्स अपलोड करता हूँ। रिसेंटली मैंने कल ही एक पजल अपलोड करी है, बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही अच्छी सी। उसको यू कैन गो एंड चेकआउट, ठीक है। उसका लिंक मैं इंस्टा पेज का लिंक डाल रहा हूँ, वहीं पर आपको मिल जाएगी। वो पब्लिक पेज जाके फॉलो करो, ठीक है। वहाँ पर पजल्स रेगुलरली आती हैं, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें और भी आती हैं और अपडेट्स के बारे में। एंड यू कैन फॉलो मी एंड यू कैन जॉइन व्हाट्सएप कम्युनिटी चैनल एंड द टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर these videos get instantly posted as soon as they are uploaded on the YouTube, ठीक है। तुरंत वहां पर पहुंच जाती है, सो दैट अगर गलती से बेल आइकन मिस भी हो गया तो आपको फिर भी अपडेट पहुंच जाएगा। सो गो एंड जॉइन देम। एट द सेम टाइम अभी रिसेंटली मैंने क्रेडिट कमेटी शुरू करी थी, बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स मुझे नहीं पता क्या हुआ, ठीक है। और आई थिंक वो रेड कमेटी पे बैन लगा दिया, पता नहीं रेड ने क्यों लगाया है उस पर बैन। आई एम स्टिल इन टच विद देम, आई एम स्टिल फिगरिंग आउट कि क्या इशू है। मैंने एप्लीकेशन उनको दिया है, आई हैव टॉक टू देम, आई हैव सेंट अ क्वेरी कि भाई अचानक से पहले दिन जिस दिन बनी उसी दिन बैन लगाने का क्या मतलब है, ठीक है। देयर इज नो वायलेशन, वहाँ पर कुछ ऐसे अजीब सी चीज़ तो हुई नहीं है। वट एवर आई एम डूइंग ऑन इंस्टा और यूट्यूब, वही सब वहीं पर था। ओनली अ पेज विद डिस्क्रिप्शन, नॉर्मल डिस्क्रिप्शन एंड नॉर्मल वेलकम पोस्ट, और तो कुछ था नहीं उस पर। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, बट ठीक है, विल फिगर इट आउट। रेड कम्युनिटी भी विल स्टिल कम ऑन, अगर वो काम नहीं करता तो विल मेक अ न्यू वन, नॉट एन इशू। पर तब तक के लिए जो सोशल्स हैं उन पे जाके फॉलो कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर दो, अपने लोगों, अपने दोस्तों में बांट दो। एनीवन हु इज जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन कोडिंग और कॉन्टेस्ट और इज जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यूज फॉर ओएस, डू शेयर विद देम। उनके लिए बहुत अच्छा, बहुत सही, बहुत ताबड़तोड़ कंटेंट रहेगा। एंड या दैट्स ऑल सेट। एंड दिस अमित शुक्ला साइनिंग ऑफ, बाय बाय गाइस। ग्राइंड करते रहो और गर्दा उड़ा दो।